model village scheme, as well as sir has also conceived and given an idea of IFLED, that is innovative farmer-led extension delivery system. And sir's pioneering work on farmer-led innovation and development of mechanism for upscaling and outscaling those farmer-led innovations were replicated by several institutions and recognized by the government. And sir throughout tried to stress on secondary agriculture and entrepreneurship development, and also its business incubation and business promotion. And since like sir was also an founder president as well as chief editor, founder president of Journal of Community Mobilization and Sustainable Development, which is based at IRI New Delhi. And also he is the chief editor of Journal of Community Mobilization and Sustainable Development, which is a 5.3 rated journal. And sir was a member of many prestigious committees, including recently sir was nominated as a Board of Management member of Indian Council of Cultural Relations, ICCR. And recently, before joining as the Vice Chancellor of this prestigious university, sir was here as a Joint Director Extension, and he was also head of the division and served at many capacities at IARI. So like in the physical trainings, we have heard sir earlier, and it used to be a very captivating and very motivating session. And I hope that in the online mode also, you will be able to have those kinds of feelings. And I request all the participants to participate in the discussion and be a part of this session, active part of the session, so that you can get something out of it. And with this, I'd like to request our honorable resource person, Dr. J.P. Sharma sir, to start the session. And for the benefit and the information of the resource person, sir, we have about 40 participants with us from different universities, including IARI. Initially, we have received some 550 plus applications, but some of them were from UG students. Since this training is especially for MSc postgraduate students and PhD students, so we selected, shortlisted 75 candidates, but out of 75, 40 could join with us, and they were here with us on yesterday. And yesterday we started the session, we tried to cover conflict management and stress management for personal effectiveness, as well as we also covered the team building session, and the broken square exercise also. It was recorded previously, and it was shown in the training program. So with this kind of understanding, the trainees are here with us in this session, and I request you to please start the session, sir. Thank you, Dr. Burman, for speaking nice words about me. And when I got this communication from Extension Division, I was more than happy to be associated with all of you. I really thankful to Madam Premlata, head of the division, Dr. Burman, Dr. Sangeeta, and Dr. Mehra, the organizing team. This division has been always innovative and designing different kind of programs, which were appreciated at national level also. And this time also the training program which you have organized online under NHEP on life skills and personality development. And now today it is becoming very important topic. And if you see the national education policy, recently we are going to launch it, implement it. One of the major focus in this policy is all-round development of the students. There they are talking about team building, cooperation, coordination, communication, all these kind of things where we are talking, they call it life skills. So to my mind, I have seen during my service whole life that these things are more important than what you are having intelligence and hard work.
And to the participant, I want to convey that it is my experience that three things can change your life. One is your level of motivation, another is your attitude, and third is your communication skills. Dr. Burman, Madam, you have assigned me the topic achievement motivation. I will be talking about what makes success, and then what is the development cycle, and what are the factors, even the non-input factors, which can make or change your life, because this is for the students. Some of the things, if they carry with them, perhaps it will change their life or add value to their life. I'm really thankful, madam, to you. You have been always very creative. And then this program will add further feather in your cap, division. And this message will not go only to IRI student, but the participating universities, students, they will carry this message and spread it in their work system. Now, first thing is how this development take place. It is because of the resources, or it is because of your knowledge, or it is because of the infrastructure. What makes success? I have realized, and it is also documented at many platforms we have discussed, that the success is within you. Success is within you, success is in your thoughts, success is in your thinking. How you think. If you say, I can do it, I assure you, when you say, I can do it, it means you are recognizing your potential. And once you recognize your potential, you can put it into practice and you can do it. Maybe you are having a lot of potential, resources, everything is there. But if you don't recognize it, there is an instance in Ramayana that who will go to Lanka to see the whereabouts, well-being of Sitaji. And then it was discussed, and then it was decided that Hanumanji may go and take this charge because he is very powerful. Then Hanumanji said, no, I cannot go. I don't have that capacity because there is a sea which is very long in width and length. I cannot cross it. Then Jamwant told Hanuman that you don't realize your potential. You can not only this sea, you can cover many seas in one go. And once he realized his potential, he crossed the sea. So that is the role of the teacher. That is the role of the motivator. That you make your client, your student, your subordinate, your team members, yes, you can do it. So my dear students, this is the first stage, that success starts from your mind, your thinking, your head. Everybody is having, I think, maybe my weight is 70 kg. Dr. Burman weight maybe little more, 72 kg, 74 kg. But that weight and strength of body doesn't count when we talk of the success. It count is your mind, how you think. Weight of the mind is 2% of body. So if we talk of many kind of management, production management, marketing management, this management, that management, but we never talk about mind management, which changes your life, which shapes your life. So today we will be discussing that what is the role of our thinking, what is the role of our attitude, what is the role of motivation in the development process. I have told you 3 things. You remember, you have full life to live, to progress, to achieve. Your motivation, your attitude, and your communication. When I say attitude,
It is not the attitude about others, attitude towards self that is more important. Attitude towards self means whether I can, attitude towards self, attitude towards others, attitude towards organization, attitude towards society. So, most importantly in this process is attitude towards self. If you think, yes, I have the stamina, I have the power, I have the resources, really you can do. There is a saying that if somebody says, nobody can do it. There is a saying, if somebody says it, that nobody can do it, Japanese will say, if nobody can do it, I can. That is the kind of culture they have developed. Not stamina and the resources and intelligence and other things. It is the makeup of the mind. Then what we will say, if nobody can do it, how I can do it? That is the thinking. If somebody says, everybody can do it, what the Japanese will say, if everybody can do it, I can definitely do it. But then what we will say, if everybody can do it, let them do it. So that is the attitude. Attitude towards self. Attitude towards others. It will change your whole life. Attitude about your parents, your family member, your wife, your children, your colleagues, your subordinate, your boss. There may be good things and bad things in every system and every person. But our role is to identify the good things. If you go into mud and searching only for bad things, you will end up in the frustration. Do you want to invite frustration? Or you are in the search of the good things about yourself also. Maybe there are many negative things. But if you indulge yourself in finding fault with yourself, then you will be frustrating. And the end may be some people even commit suicide when they have negative attitude about themselves. And then the attitude toward the organization, it is also important. If you think this university is not doing anything, they have not provided any infrastructure facility, even the trainees, when they come to our institution, IRI, they were coming. One person was coming with the intention that I have got this opportunity to learn something from IRI. Scientists, we will be with them for 21 days. They were not bothered about food and their living conditions. But there were another class of the trainees from the first day, they were concerned about, I consider that, okay, there should be good facility, there should be good food, but we should not forget the real purpose of coming and attending any program. So it is also the attitude, how you look at your organization. And once you look at your organization positively, you love it, you own it, then there is only single word. If you own it, own your responsibility, own your family, own your organization, then you will be really able to do justice whatever is expected from you. So ownership also comes from the kind of attitude we have. And then there is a cycle for development in our life. And the development process starts from arousal of need. What is need? There are two terms. One is need and another is want. We use them interchangeably, but psychologically, there is little difference. What is the difference? Need is a temporary idea which comes in our mind in a particular situation. And when we withdraw from that situation, that idea or thought vanishes away. Suppose you are going to a temple, Haridwar. Maybe when you enter the temple or any temple, good place, your thoughts changes.
your perspective for the life changes. And you think, now I have to change my life. There are some other good things beside my own development and all that kind of things. But when you withdraw from that situation, you again became the same person. That learning you have not internalized. And one example which we notice when we participate in a funeral of any relative or friend or neighbor, when we participate in the funeral procession, what is the thinking going on? The thinking is there is nothing in life. Ultimately, there is an end. And I have to come to this place someday or the other. So when I have to come empty hands, I have to come empty handed and nothing can be taken. Whatever I have earned, this building, gadi, everything, whatever I have created, I cannot take even a single pie. Then whole perspective of life changes. Then we think, from tomorrow, I will be a changed person. I will help the people. I will not create problem for anybody because ultimately I have to die. उस तरह की आप में भावनाएं, संत प्रवृत्ति की भावनाएं उस समय आप में आती हैं. लेकिन जैसे ही आप लौट के आते हैं, 2 लोटा पानी आप डालते हैं, अगेन यू बिकेम द सेम पर्सन. उसको तो देख लेंगे, उसका ऐसा कर देंगे, इसका ऐसा कर देंगे. Because that learning was temporary. That learning from here, from your head, did not go to your heart. It was not an internalized learning. So that state of mind, where some ideas comes to your mind in a particular environment, and when you withdraw from the environment, those ideas or thoughts vanishes away, is called need. That is need. And after need, there is another stage which is called want. There is a difference between need and want. In earlier stage, you were having only thoughts. But in the case of want, you really want to achieve whatever you want, whatever is your objective or goal. So you are in the tension. You try to achieve whatever you have seen. There is a kind of junoon. There was an interview of Dhirubhai Ambani. People ask him, this reporter asked him, what makes success? That Dhirubhai Ambani story. He was 9th class fail, working at a petrol pump, then started selling dhotis on bicycle, and then he started a shop in 10 by 10 feet room. And now I was going through a newspaper few years back. His total capital was 5 lakh crores. We don't even cannot read. There were so many zeros in front of 5 that we cannot even count. A person from that level, how he reached up to that stage. And the reporters asked, how you have done it? Then he said, Junoon. He said, dreams, sapne dekhi. सपना वो नहीं है जो आपको सुला दे, सपना वो है जो आपकी नींद को भगा दे. यानी कि whatever you objectives or goal you have in your mind, it should be 24 hours in your mind. You should be with that message 24 hours. And that is the state when you are in the stage of wants. And then he said, सपने देखो, बड़ा सोचो. सपने means think big. Because with open eyes, you cannot imagine many things. But in dreams, you can imagine big things. So he said, see dreams. And फिर उन्होंने कहा, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो. There are many people who see dreams. Daily they are thinking, I will do this, I will do that, and never they do it. उन्होंने कहा, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, और जल्दी करो. So the second stage, want, which gives you tension to achieve. But there is a different category of the people.
they also develop tension to achieve their goal, but they never do it. And then Shiv Khera book I was reading, he described those kind of people. They are suffering from paralysis of analysis. They throughout their life they are analyzing different situation. If I do it, what will happen? If I do it, what will happen? But they never do it. So this is the third stage. Need a temporary thought, then want you are aspiring to achieve, and in the process you get tension. Now, for the benefit of all our students, there are three terms which are used. One is tension, another is stress, and third is depression. Tension is a momentary act, and when you withdraw from that situation, it comes in a particular situation, and when you withdraw from that situation, that tension goes away. Suppose you are going to an examination center, and then there is a jam in the traffic jam is there, and you are worried whether you will be able to reach your center in time or not. And then jam is clear, and then you reach your destination, and you are satisfied, happy, and the tension is removed. This is temporary. Another stage may be if the tension persists over a period of time due to some problem, maybe the health problem, maybe the employment problem, or maybe some other family problem. When this tension persists over a period of time, it is converted into stress. And now there is a debate, thinking, different thoughts, whether we require stress in our life or not. I say limited stress is required for our achievement, performance. We are discussing about the achievement. So how this stress, from where this stress comes, and how this stress help you to achieve more. From where this stress has come. When our ancestors, where they were living in forests, jungles. What were their worries at that point of time? They were having two worries mainly. One is getting food, fruits, leaves, or hunting other animals. And the bigger worry was safety of life from natural calamities, floods, fire, or from attack from other animals. That was the life-threatening situation when they arises. So two situations. One was big, small worry, food, shelter, water. Another big worry was life, saving from calamities or from other animals. So whenever there was a threatening situation in that period of time, a system developed. When the human was living in the jungle, suffering from two kinds of threats, food, water, and threats from wild animals and natural calamities, then a system developed in the body that whenever this situation arises, that hypothalamus, pituitary gland, releases a fluid, adrenaline. And that adrenaline released from the body was responsible to give more energy, more power to the individual. And how it was giving? Because the power in the body comes from the circulation of blood and presence of oxygen in our blood. So whenever that life-threatening situation arises at that point of time, that adrenaline started controlling the circulation of blood. So it will allow the blood circulation only to those parts which were responsible for giving them power, strength. They will control the supply of blood to those parts who were responsible to
fight or flight. When there is a life-threatening situation, what you will do? Either you will fight or you will run away from that situation. And for both the things, you require additional energy. So in that situation, adrenaline was controlling the circulation of blood, and it was allowing the blood only to those parts which were responsible for fight or flight. If you see experience in a life-threatening situation yourself, if this situation comes, what happens? हमारे हाथों के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, रोंगटे जिसको कहते हैं, रोंगटे खड़े हो गए। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि जो पेरिफेरल्स है उसको वो लड़ने या भागने के लिए जरूरत नहीं है, उनका कोई रोल नहीं होता, इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन एड्रेनलाइज इस तरह से कंट्रोल करता है कि वो सर्कुलेशन हमारी पेरिफेरल्स पे ब्लड का नहीं होता। इसलिए जो टेम्परेचर है मसल्स का और पेरिफेरल्स का, उसमें टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। If at that point of time you take a temperature of your peripheral skin and muscles and neck, there will be difference of 5 degrees centigrade. हमारी मसल्स का टेम्परेचर, गर्दन का टेम्परेचर उस समय आप लें और स्किन का टेम्परेचर लें तो उसमें 5 डिग्री का अंतर होगा। वो क्यों? कि जो हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो सिर्फ उन अंगों को जा रहा है जिनसे हमें या तो भागने के लिए ताकत चाहिए या जो एनिमी है उससे लड़ने के लिए ताकत चाहिए। So that was the situation. And after the event, the person become normal. Normal means यदि आप जंगली जानवर से लड़ते हुए मारे गए तो कोई सवाल ही नहीं है, दिक्कत। यदि आप बच गए और आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी जो जनरेट हुई थी, it was utilized in fighting or from running from the situation. And after the event, that extra energy was utilized and you became normal. जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई थी या तो वो लड़ने में यूज हो गई या भागने में यूज हो गई और आफ्टर द इवेंट यू बिकम नॉर्मल। लेकिन अब क्या होगा? अभी भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, अब हम डेवलप हो गए, लेकिन वो जो सिचुएशन थी एड्रेनलाइज की वो अभी भी है। कोई ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ थ्रेटनिंग नहीं या छोटी भी दिक्कत आती है, कोई ऐसा लगता है कि हम इसमें किसी ने आपको अपशब्द कह दिए, लड़ाई हो गई, तो वो एड्रेनलिन अपना काम करना शुरू कर देता है और वो आपको जो है एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी देना शुरू कर देता है और उस सिचुएशन में आपकी जो मसल्स टाइट हो जाती हैं एंड यू आर रेडी टू फाइट। लेकिन अब लड़ते नहीं, हम सोचते हैं कि भाई लड़ाई की, कुछ कह दिया, ये कर दिया तो नौकरी चली जाएगी, स्टूडेंट हैं आपको तो ये हो जाएगा कि हमें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी में रिलीज हुई लेकिन उसका यूज नहीं। वो यदि एब्डोमेन में रिलीज हो गए जूसेस तो आपको अल्सर हो गया, दिमाग में हो गए तो कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्लड का हो गया, जमाव हो गया तो वो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी जो 90% जो डिजीजेज हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड है। तो कहा यह जाता है कि देयर इज ए नीड टू हैव लिटिल स्ट्रेस व्हिच कैन बी मैनेज्ड। एब्सेंस नहीं होना चाहिए स्ट्रेस की, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस लेना भी हानिकारक होता है। अब मान लीजिए कैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अभी कोई बुजुर्ग आदमी है, उससे कहें कि आप ये नाला पार कर जाइए 6 फीट का, कूद जाइए, तो बुजुर्ग क्या कहेगा? डॉक्टर साहब मरवाएंगे क्या, बुढ़ा आदमी हूँ, इसको कैसे कूदूंगा। लेकिन ये उस बुजुर्ग के पीछे आप पागल कुत्ता दौड़ा दें, कुत्ता छोड़ दें उसके पीछे, क्या होगा? वो आदमी जान बचाने के चक्कर में वो 6 फीट नहीं 8 फीट कूद जाएगा, फिर मुड़ के देखेगा कि मैं कैसे कर दिया ये। वो उसने नहीं किया, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, उसको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आई, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिली उसके कारण वो परफॉर्म किया। इसी तरह से जब बॉर्डर पे युद्ध होता है, वार होता है और सोल्जर को ये पता है कि 1 to 1 हम फाइट कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस नहीं है एनिमी और हमारे बीच में, लेकिन उस समय जो उसका जोश होता है वो स्ट्रेस के कारण होता है। मातृभूमि के बारे में वो सोचता है, वो फैमिली के नहीं सोचता और कुछ नहीं सोचता, अपनी जान की नहीं सोचता, उस समय उसमें एक जुनून होता है और वो जो स्ट्रेस होती है
वो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देती है, जिसकी वजह से वो जो वैसे नॉर्मल रूप में संभव नहीं था वो कर जाता है। स्टूडेंट ने खुद रियलाइज किया होगा, पूरे ट्राइमेस्टर या सेमेस्टर जो चीज समझ में नहीं आती है 4 महीने में आपको समझ में नहीं आई, लेकिन जब एग्जाम आने वाले होते हैं आप कहते हैं कि 2 दिन का समय और मिल जाता, उस 2 दिन में क्या कर लेते, 4 महीने में तो किया नहीं, लेकिन वास्तव में ही उस दिन एक एक घंटा, एक एक दिन इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जो 4 महीने में आप नहीं सीख पाए थे, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वो आप सीख जाते हैं, क्योंकि उस समय आपका जो है स्ट्रेस लेवल होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो लाइफ में स्ट्रेस भी जरूरी है। और जो थर्ड स्टेज है, टेंशन, stress and depression. If you continue with that kind of stress over a longer period of time, that stress is converted into depression. इससे बचना है। Depression क्या है? Stress क्या है? It is stretching the nervous system. It is like nervous system is like elastic. If you stretch it and then you leave it, it will come to its original position. If you further stretch it and leave it, it will again come to its original position. But if stress is to that extent that it never comes to its original position, then there is a permanent stress in the nervous system, and it gives depression. And it is very difficult to come to the normal situation after the depressing situation. So the try we should do. Tension is a part of life. Every day we experience tension and then come to original form. And then stress is also required up to certain level to perform better, but never carry that stress over a period of time. Now you see the loss because of this kind of situation. I have seen the IIT student, 4th year, and his semester was repeated, very good family, and he was already offered a job in some multinational company. And then he multiplied that stress of failing in a semester, and ultimately he committed suicide. There was a whole life in front of him. There was delay of only 6 months. Then his job was assured. And I know that family personally. His father was director in defense ministry. Mother was also employed, and he was a single boy. And he was a student of IIT Madras. Now you see, it is mental thinking, mental processing. So, my dear students, there may be ups and downs, there may be failures and success, but never allow your stress level up to extent that it is converted into depression. Now, after discussing 4 stages, need, wants, tension, there is another development cycle, and the most important thing is then action. Now, there are certain people who end up at need state. There are people who goes up to the stage of wants. Then the third category, they take tension also, but the achievers cross these stages and then they do some action. And action is most important to achieve anything. In Gita, I was reading in Gita, 14वें अध्याय में, गीता में ये कर्म के बारे में लिखा हुआ है कि सक्सेस किससे मिलती है। देखिए, हम एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पढ़ाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कहाँ की बाहर की किताबों से हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं। मुझे पूरी एंटरप्रेन्योरशिप गीता के 14वें अध्याय में दिखी। वहां पे लिखा हुआ है किसी भी उद्यम में सफल होने के लिए 4-5 चीजें उसमें गीता में बताई गई। उसमें कहा है कर्ता कौन है, यानी कौन कर रहा है, उसको करने वाला कौन है। एक शब्द जो कर्ता कहते ही, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, रिसोर्स सिस्टम, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन। उसकी सारी क्षमताओं के बारे में एक शब्द में कह दिया कि सक्सेस विल डिपेंड ऑन कर्ता, कौन कर रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि वो उद्योग किस स्थान पे हो रहा है, कहां पे आप कर रहे हैं। यानी हम एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें, हम करें कैसा फ्लोरिकल्चर जो है इटावा में कर रहे हैं,
फार फ्लंग एरिया में कर रहे हैं, पेरिसेबल कमोडिटी है, पैदा कर रहे हैं गांव में, डिमांड है सिटी में, सिटी 400 किलोमीटर दूर है, छोटे छोटे फार्मर हैं, इट विल नॉट सक्सीड. बट इफ यू डू एनी एंटरप्राइज नियर द सिटी पेरी अर्बन एरियाज, सुई से लेके हवाई जहाज दिल्ली के आसपास करते हैं, नोएडा में करते हैं, गुड़गांव में करते हैं, बुलंदशहर में करते हैं, सोनीपत में करते हैं, सुई से लेके हवाई जहाज तक की कोई भी चीज आप करते हैं उसकी डिमांड है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट है, सुविधाएं हैं. तो दूसरा चीज जो कहा गया है गीता में, कि सक्सेस होने के लिए उद्यम को स्थान का चयन करना बहुत जरूरी है. और थर्ड चीज कही है उसमें, कर्ण उपकरण, यानी आपकी मेथोलॉजी क्या है और आपके उपकरण क्या है. कर्ण मेथोलॉजी. कुछ लोग कहते हैं साहब जिंदगी भर गधे की तरह काम करता रहा, जिंदगी भर लगा रहा, इस संस्थान से क्या मिला, बहुत मेहनत की. मेहनत नहीं, वो स्मार्ट कितना था आपका काम करने का तरीका कितना था. कुछ लोग हैं कम काम करते हैं लेकिन वो तरीके से करते हैं. मैं आपको उदाहरण दूं. एक बच्चा है, ड्राइंग रूम में पढ़ रहा है, अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते, टीवी भी देख रहा है, टेलीफोन की घंटी भी बज रही है, और वो पूरे दिन किताब लेके बैठा रहता है. दूसरा बच्चा है, उसको पढ़ते हुए देखा ही नहीं आपने, पूरे दिन बच्चों के साथ खेलता भी है, स्कूल भी जाता है, सब ये करता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसका 90% आता है, जिसको पढ़ते हुए नहीं देखा. और जो दिन भर किताब लेके बैठा रहता था उसका 60%, 70%. लोग तारीफ करते हैं, ये कैसे हुआ. होशियारी नहीं, इंटेलिजेंस ही नहीं, उसका पढ़ने का तरीका. वो सुबह सुबह जो होती है सबसे ज्यादा आप में एनर्जी होती है, जो माइंड है वो उतना फ्रेश होता है. इसीलिए ऋषि मुनियों आश्रम में ये बात होती है 4 बजे से वहां जीवन शुरू हो जाता है. तो वो स्टूडेंट 4 बजे उठ के फ्रेश होके 2 घंटे पढ़ता है बस, और उस 2 घंटे में जो 4 घंटे 5 घंटे दिन में नहीं पढ़ सकता था उसमें उसको याद हो जाता है. तो वो जरूरी नहीं है कि किताब कितने घंटे लेके बैठा जाए, लेकिन किस एनवायरनमेंट में उसको पढ़ा जाए ये जरूरी है. हम जब स्टूडेंट थे, पन्नगर में थे, एक हमारे साथी थे सुधांशु गोस्वामी, फिर उन्होंने यहीं आके पीएचडी एमएससी की जेनेटिक्स में, फिर स्टेट्स में चले गए, यूएसए में चले गए. वो 11-12 बजे तक हमको डिस्टर्ब करते रहते. हमको लगता था यार सुधांशु गोस्वामी जो टॉपर है वही नहीं पढ़ रहा तो हमें क्या पढ़ने की जरूरत है. लेकिन वो हम सबको सुला के फिर रात को पढ़ता था, 12-1 बजे पढ़ने बैठता था, 3-4 बजे तक पढ़ा. तो वो उसकी मेथोलॉजी थी, यानी काम कितना मेहनत की जाए वो तो ठीक है, लेकिन मेहनत का तरीका क्या, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो गीता में कहा गया. और लास्ट उन्होंने कहा है, लास्ट बट वन, उपकरण. आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है. अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेजरी नहीं होनी चाहिए, नए नए टेक्नोलॉजी आ गई, स्मार्ट एग्रीकल्चर आ गई, आईओटी आ गई, आईसीटी आ गई, एआई आ गई. तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है, अभी मैं देखता हूँ एक ग्रुप बना रखा है आईआरआई में इनोवेटिव फार्मर्स का, मैं उसको रेगुलरली देखता हूँ. फार्मर्स ने ऐसे ऐसे इनोवेशन किए हैं, लो कॉस्ट इनोवेशन, कि उससे उनकी इफिशियंसी बहुत बढ़ गई और ट्रेजरी बहुत रिड्यूस हो गई है. तो जरूरत इस बात की है कि जो आपके कर्ण उपकरण टेक्नोलॉजी है वो कैसी है. लास्ट में उन्होंने कहा है टू बी सक्सेस द लास्ट थिंग इज भाग्य. भाग्य से जो उनका मतलब है, जो मैं समझता हूँ गीता में, कि ये सब करने के बाद, अच्छे कर्ण उपकरण स्थान और कर्ता, ये सब करने के बाद भी यदि सक्सेस नहीं मिलती तो उसका दोष जीते. अदरवाइज तुमको फ्रस्ट्रेशन होगा, नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा कि मैं कर नहीं पाया, मुझ में सामर्थ्य नहीं है. तो वो फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा है आप कर्म करो, ये चारों चीजों करो, फिर भी यदि आप सफल नहीं होते तो उस असफलता का दोष मुझे दे. ये 5 चीजें उन्होंने कही है. लेकिन अब क्या हुआ है, सबसे पहले हम भाग्य को लिया. क्या कहते हैं, भाग्य से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा. यानी कि भगवान आएगा, आप बैठे रहिए, न पढ़िए न काम करिए, और जब आपका समय आएगा वो ऊपर से छप्पर फाड़ के आपको दे जाएगा. ऐसा नहीं है. भाग्य से मतलब है कि आप अपना सारे कर्म करिए और फिर ऊपर वाले के हाथ में उसको छोड़ दीजिए कि मैंने अपना काम कर दिया, सो दैट
यदि ना भी सक्सेस हो तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो और फिर से उसको काम को शुरू कर दें। अब इसमें सबसे जो डिफिकल्ट अभी तक का जो चीज थी वो एक्शन थी। अब एक्शन में एक्शन कितने बार किया जाए, एक्शन कितने बार किया जाए, ये डिपेंड करता है द हाइट ऑफ योर गोल। स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो आपने अपना टारगेट क्या रखा है, 80% लाने का रखा है, 60% लाने का रखा है, 50% रखा है। ये जॉब की हम बात करें तो आपने क्या साइंटिस्ट बनने का रखा है, या आईएएस बनने का रखा है, या आईपीएस बनने का रखा है। तो कितना एफर्ट किया जाए और कितने बार एफर्ट किया जाए, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ योर गोल। I have seen the people, my own student and I are in the same division. मैंने महसूस किया कि वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन उनका जो डिटर्मिनेशन था। मेरे एक स्टूडेंट का रेलवे में हुआ, इंडियन रेलवे सर्विसेज में हुआ। He joined and then still he was preparing for IAS. नेक्स्ट टाइम उसका आईपीएस में हुआ, लेकिन उसको पोस्टिंग जो कैडर मिला वो कोई डिफिकल्ट एरिया मिल गया। अगेन ही प्रिपेयर्ड for this IAS proper. Then again he got IPS only, but he got cadre of his choice. So that is the kind of confidence and that determination कि हमें नहीं तो क्या है कि हाँ भाई मिल गया अब तो जिंदगी बन गई, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो तब तक एफर्ट करता रहा जब तक कि जो उसकी जो मंजिल थी वो उसको नहीं मिल गई। कुछ लोग क्या है, स्टूडेंट भी और रियल लाइफ में भी, हम हेड हैं, डायरेक्टर हैं, किसी को कहा ऐसा कर लो, वो आके दूसरे दिन खड़े हो जाएंगे, डॉक्टर साहब जैसा जैसा आपने कहा था वैसा कर लिया, यहाँ कोई संभव नहीं, इस इंस्टीट्यूट में कुछ नहीं हो सकता। और कुछ लोग तो समाज और देश तक चले जाते हैं, साहब यहाँ का तो सिस्टम ऐसा है, इस कंट्री का, इस कंट्री में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो अचीवर होते हैं उनकी थिंकिंग ये नहीं होती। They keep on making attempt until unless they achieve their goal. एक सरिया होती है लोहे की, उसको हथौड़े से काटते हैं। यदि वो सरिया पतली है एक बार में कट जाए, यानी गोल आपका बहुत छोटा है तो आपको एक बार में मिल जाएगा, 50% की लिमिट रखी थी मिल जाएगा। यदि आपका गोल बड़ा है, मैं आईआईटी में था, मेरे साथ में एक हमारे पन्नगर के साथी थे जो इंजीनियरिंग के थे, मेरे कमरे में रहते थे, उनकी एमटेक हो चुकी थी, हॉस्टल उनको नहीं मिला था, मेरे कमरे में रहते थे। मैं ऊपर सोता था चारपाई पे, वो नीचे चटाई बिछा के सोते थे। जब सोता था तब भी पढ़ते रहते थे, उठता था तब भी पढ़ते रहते। और 3 बार वो आईएएस के लिए अपियर हुए, लेकिन उन्होंने कभी उसको हारे नहीं। मैं तो उनकी मेहनत ही देख के कभी सोचा नहीं कि आईएएस में बैठूं, लेकिन अल्टीमेटली ही अचीव्ड इट एंड देन ही रिटायर्ड लास्ट मंथ as a chairman of public sector undertaking. He was a chairman of many units of government of India. तो मैं ये इससे सीखा कि कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहना। अब जो मोटी सरिया है, हो सकता है जो गोल है बड़ा, एक बार में ना हो, 2 बार में न कटे सरिया, 3 बार में न कटे, हो सकता है 10वें अटेम्प्ट में आप उस सरिया को काटें, रॉड को कटे, लेकिन वो जो 9 अटेम्प्ट थे वो बेकार नहीं गए। सक्सेस एट द 10th attempt was the cumulative effect of 9 failures. आप अपने जीवन में बहुत बार प्रयास करेंगे, हताशा नहीं करनी है कि अभी नहीं हुआ, लगे रहना है। लेकिन कुछ लोग हैं 6 बार चोट मारते हैं, 8 बार मारते हैं, और कुछ लोग तो 9 बार पर रुक जाते हैं, लेकिन सक्सेस was due on 10th attempt. So strike till you achieve the success. एक कहावत है, लोहा गर्म है चोट मारो। मेरा कहना है लोहा गर्म होने का इंतजार मत करो, चोटें इतनी मारो लोहा गर्म हो जाए। So keep on making attempt until and unless you achieve your goal, your target. And now what is the next in this developmental cycle? First I told you need, second was want, third was tension, fourth was action, and after that action you may fail, you may achieve. And there are some people who fail, they leave it, and there are people who keep on making attempt to achieve. So after achievement, what will happen? You did action, you achieved, and then what you will do it? You will feel,
satisfaction. You will feel happiness. So, and then after happiness or satisfaction, what will happen? There are some people, they say, I have achieved my goal, now I am satisfied, nothing to do more. But there are other category of the people, they will again go to the same circle. They will develop a higher level of need. पहले स्कूटर था, फिर 800 मारुति हो गई, फिर थोड़ा लंबे वाली हो जाए. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. एंड देन लंबे वाली हो गई तो पूरे घर में दो तीन हो जाए. यानी कि when they achieve one level of their target, they set another target for themselves, and then they again repeat the same cycle: need, want, tension, action, achievement, and satisfaction. So this cycle goes on. And then there are two categories of the people. The hardest and most difficult thing in this whole process, whole development cycle, is the action. There are many people who want to get satisfaction, but they want to avoid action. Bina action ke satisfaction ho jaye. Many people try to do it. And how they do it? सीधे कुछ लोग तो नीड से ही आ जाते हैं सीधे satisfaction. There are different categories. There are some people, they don't even have the needs to develop. They are satisfied. There is a philosophy, two kind of philosophy. Santosam Param Sukham. Our जो पुरानी philosophy थी, संतोषम परम सुखम. यहाँ थी संतोष है तो वही सुख है, करने की कोई जरूरत नहीं है. एक ही धोती है, उसी को दिन में लपेट लो, रात को उसी को ओढ़ के सो जाओ. संतोषम परम सुखम. अब जो थ्योरी है डेवलपमेंट की, इट इज टोटली कंट्रास्ट. जो अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी है, अचीवमेंट की थ्योरी है, इट सेज यू नेवर हैव टू बी सेटिस्फाइड. यदि आप संतुष्ट हो गए तो आपकी ग्रोथ. बट आई डोंट सब्सक्राइब एनी ऑफ दीज टू थ्योरीज दैट यू आर satisfied without achieving anything in your life. And the second thing is, you are never satisfied in spite of all kind of achievement. उससे क्या होता है? There should be a balanced life. You should have a challenge in your life. But whatever you have achieved, you should also be able to utilize it in your life. आपने इतना टेंशन, क्योंकि हर चक्कर जो लगाएंगे आप, जो नीड, वांट, टेंशन, एक्शन, अचीवमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये जो चक्कर आप एक लगाएंगे हर बार आपकी उस चक्र में टेंशन आए, और आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो टेंशन बार बार आएगा. लिहाजा आपकी पूरी लाइफ में टेंशन ही होगा. एंड व्हेन यू सी अ पर्सन इज इन टेंशन, स्ट्रेस, वन कैन नॉट एंजॉय व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड. एक डॉक्टर के पास में एक मरीज गया तो देखा डॉक्टर के सामने जो कुर्सियां रखी हुई थी वो पीछे से बिल्कुल ठीक थी, जो सीट थी कुर्सियों की, आगे से वो खराब थी. तो वो जो मरीज था उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, ये चेयर्स आपकी जो है पीछे से तो नई सी लग रही हैं, आगे से बिल्कुल खराब कैसे हो गई? बोले, यहाँ जो है मैं दिल का जो डॉक्टर हूँ, हार्ट का जो सर्जन हूँ, यहाँ जो लोग आते हैं पूरी कुर्सी पे कोई बैठता ही नहीं, इतने टेंशन में होते हैं कि अगले 4 इंच पे ही वो बैठते हैं, जैसे उसको पूरा बैठने से तबीयत खराब हो जाएगी और आगे बैठने से उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी. एंड इट हैपेंस. आप रियलाइज करिए कि आपका पेशेंट हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन थिएटर में गया हुआ है, रेड लाइट उसमें जल रही है, उसका ऑपरेशन होना है, और जो रिश्तेदार हैं वो लॉबी में उसका पेशेंट का इंतजार कर रहे हैं. लॉबी में प्लांट्स अच्छे लगे हुए हैं, आजकल तो हॉस्पिटल 5 स्टार की तरह हो गया, सोफे भी लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं, पर क्या उसके रिश्तेदार उस पर बैठे हैं? वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर के सामने सामने चक्कर लगा रहे हैं. उस पर वो बैठ भी जाए तो कोई अंदर पड़ने वाला नहीं है. लेकिन जो मनोदशा आपकी टेंशन में, you are not able to enjoy whatever you have achieved. आपने इतना इकट्ठा कर लिया, आपसे कहा डॉक्टर साहब ये खा लीजिए, बोले नहीं थोड़ा डायबिटीज है, मना किया.
अच्छा जरा छत पे चलते हैं, हवा आ रही है, नहीं चढ़ने के लिए मना किया, खाने के लिए मना किया, चलने के लिए मना किया। आपके उसको जो आपने इकट्ठा किया यूज कौन कर रहा है, एंजॉय कौन कर रहा है? आप ऐसे ही चले जाएंगे, एंजॉय कोई दूसरा करेगा। तो वॉट एवर आई एम सेइंग दैट वॉट एवर यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ, you should be conscious for your health, mental health, emotional health, and physical health. So there should be a balance in your life. Neither that situation you are satisfied without achieving anything, nor the situation you have achieved everything, but you are not satisfied. There should be a attitude of gratitude. ये attitude of gratitude क्या होता है? भगवान आपने पूरी मेहनत की, लेकिन उसके बाद में आपने कहा कि भगवान तेरा शुक्र है, मुझे इतना दिया। Then you will really enjoy that. एक आदमी जा रहा था, ठंड का मौसम, जूते नहीं थे पैर में, दिसंबर का महीना, ठंड कड़ी थी। वो भगवान को दोष दे रहा था कि भगवान इतनी ठंड है और पैर मेरे रखे नहीं जा रहे रोड पे, तुमने इतना भी मेरे ऊपर नहीं किया कि मैं कम से कम जूते खरीद पाता। वो व्यक्ति आगे गया, आगे उसने देखा एक व्यक्ति, उसके पैर ही नहीं थे, उसके पैर नहीं थे। उसने कहा हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्र है, कम से कम आपने मुझे पैर दिए हैं जिससे मैं चल सकता हूँ। तो ये जो है, जो आपको अचीव हुआ है। कुछ लोग हैं, अब आप स्टूडेंट हो, नौकरी लग जाएगी तो मजा आएगा, साइंटिस्ट बन जाएंगे तो हमारा दिन भी आएगा जब साइंटिस्ट भी बन गए, जरा प्रिंसिपल साइंटिस्ट हो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, हेड हो जाएंगे तो हमारा दिन आएगा, हमारा समय आएगा। फिर तब भी हेड भी बन गए तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, डायरेक्टर बन जाए तो मजा आएगा। यू आर नेवर सेटिस्फाइड और कहते रहते हैं हमारा भी समय आएगा, और कहते कहते एक दिन ऊपर से आते हैं और वो कहते हैं चलो तुम्हारा समय आ गया, चलो। आज आपका समय है, हर दिन आपका है, ये इसको एंजॉय, इसको जियो। डोंट वेट कि हमारा तब समय आएगा। आपका समय आज है, यू लिव इट। अब कुछ लोग बिना अचीवमेंट के कैसे सेटिस्फाइड होते हैं? वो दूसरों के अचीवमेंट को क्रिटिसाइज करके। इफ यू नलिफाई द अचीवमेंट ऑफ अदर्स, यू फील सेटिस्फाइड। किसी का प्रमोशन हो गया डिवीजन में, यूनिवर्सिटी में, आपके कुलीग का, आप क्या कहेंगे? अरे साहब, हमको पता है ये प्रमोशन कैसे कैसे हुआ, जमीर बेच डाला, कितनी चमचागिरी की है, तब जाके ये प्रमोशन लिया है। ये मैं अपना जमीर कभी बेच नहीं सकता, ऐसे प्रमोशन को मैं याद। अब सबसे जाके बुराई करके कि ये बिल्कुल इनका जो प्रमोशन है वो नाजायज है, और नाउ यू आर हैप्पी विदाउट योर प्रमोशन। तो ये एक प्रवृत्ति दूसरे को नीचा दिखा के, और मैं आपको बताऊं, कुछ कंट्रीज के बारे में पता है, people are concerned only with their own work, and whenever help is required they also extend help to others. They are emotional also. हम कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज में इमोशंस है। I have seen, I visited many countries. कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, सारी गाड़ियां तुरंत पीछे पीछे रुक जाएंगी, उसको एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, उसको हॉस्पिटल तुरंत लेके जाएंगे। जहाँ हैंडीकैप्ड की गाड़ी खड़ी होनी है वहां जो है कोई खड़ी नहीं कर सकता, वो उसको प्रायोरिटी। I just give my own example. I was tired in a mall, so my wife was also with me. She was doing some shopping. तो मैं थक गया, तो एक पोल जो मॉल के अंदर था उसका सहारा लेके मैं खड़ा। One madam came. Sir, why are you so sad? आप क्यों इतने दुखी लग रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं? मैंने कहा मैडम आई एम ओके। यहाँ कोई पूछेगा क्या? यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, लोग देखते चले जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको शेयर करते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग, इमोशंस जो है बाहर भी है। तो हम यहाँ हमारा क्या कंसर्न है, वहां लोग दूसरे के उससे कंसर्न नहीं है, कोई तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा, दे आर नॉट कंसर्न, बट वी आर कंसर्न।
नेगेटिवली कंसर्न। तरक्की कोई दुनिया करे, वी आर नॉट कंसर्न, लेकिन अपना करे तो हम कंसर्न है। कोई कहे कि साहब आपके ये फलां फलां डायरेक्टर आ गए, आपके क्लास फेलो थे, हम क्या करेंगे? माथा पकड़ के बैठ जाएंगे। वो कहेगा साहब आप दुखी क्यों हो रहे हैं, वो तो आपका क्लास फेलो 4 काम करेंगे आपके। हम कहेंगे 4 काम नहीं, कहीं से भी ले आते, किसी को भी ले आते, लेकिन मेरा आदमी, मेरा रिश्तेदार, मेरे गांव का, मेरा नेबर, मेरा क्लास फेलो, ये मेंटेलिटी हमने डेवलप कर ली है। और ये दुख का कारण, ऋषि मुनि भी कहते हैं कि हम अपने दुखों से दुखी नहीं है, हम दूसरों के सुख से दुखी हैं। क्या इस हैबिट को, क्या इस एटीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं? और नॉन इन्वेस्टमेंट है, नो इनपुट, कोई खर्चा नहीं करना, लेकिन ये सोच होगा। एक आदमी था, क्रैब का बिजनेस करना चाहता था, उसको वो हवाई जहाज में बुक करने के लिए ले गया, ताइवान भेजना है, क्रैब वहां बहुत खाते हैं। जब वो बिजनेस बुक करने गया तो वहां बुक करने वालों ने कहा साहब इसको आप हवाई जहाज में नहीं भेज सकते, ये लाइव है, यदि इसको हम बंद कर देंगे डब्बे में तो ये मर जाएगा, और खुला छोड़ देंगे तो हवाई जहाज में तो तबाही मचा देगा। तो इंडियन बोला कि साहब आप इसे बुक कर लीजिए, ये इंडियन क्रैब है, एक ऊपर चढ़ना चाहेगा तो 4 उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेंगे। दैट इज अवर मेंटालिटी। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट अवर प्रोग्रेस, वी आर कंसर्न दैट नोबडी शुड प्रोग्रेस, स्पेशली अवर ओन पीपल। मैं अपने ऑफिस से निकलूं, कोई लंबी गाड़ी मुझे दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि गाड़ी मेरे सबऑर्डिनेट ने खरीद ली लंबी वाली, मुझे बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी दिखे, यदि मेरे डिवीजन का कोई आदमी उसने बंगला खरीद लिया तो मेरे पेट में दर्द, अरे खुश होना चाहिए। लंबी गाड़ी आपको हो सकता है कभी घुमा फिरा भी दे, लेकिन दुख हम खुद पाते हैं। तो हम जब दूसरों की जो नेगेट करते हैं, ये भी हो सकता है कि हम अपनी लाइन को लंबी करें, दूसरे की लाइन को छोटी न करें, और अपनी लाइन को बढ़ाने के लिए, अपने अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए यू हैव टू डू एक्शन, लेकिन उसे हम अवॉइड करना चाहते हैं। We want success without doing action, and if somebody achieve success, we want to negate his or her success. तो एक मैसेज, हम दूसरों की सक्सेस को छोटा ना करें, नेगेट ना करें, हम अपनी लाइन को बड़ा करें, and that is possible with hard work, action. Now, जो मोटिवेशन है, कैसे होता है मोटिवेशन? क्या चीजें हैं जो मोटिवेशन जिनकी वजह से होता है? अब आपके सामने नहीं हूं, लेकिन मेरा स्टाइल पढ़ाने का ये है कि मैं आधी चीजें आप स्टूडेंट से ही कहलवाता हूं, या जो ट्रेनीज होते हैं वो कहते हैं, आई ओनली गिव माई व्यूज एंड एड ऑल योर इनपुट्स, बट सिंस वी आर सिटिंग अपार्ट, आई हैव टू डू एवरीथिंग, आई हैव टू ऐड एवरीथिंग फ्रॉम माई ओन। एक है मोटिवेशन के लिए आपका एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आपके अंदर से मोटिवेशन आता है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं, हमारा जो माइंड है ये 2 पार्ट हैं इसके, एक कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो अभी हम जिस स्टेज में हैं ये कॉन्शियस माइंड है, और एक अनकॉन्शियस माइंड जो अंदर है, इट इज 1000 टाइम मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। यदि वो कुछ डिसाइड कर ले तो इजी हो, बहुत इजी है कुछ भी अचीव करना है, लेकिन उस तक ये जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको उस तक पहुंचने नहीं देता। सब कॉन्शियस माइंड वो चौकीदार की तरह खड़ा रहता है, आपको अंदर घुसने नहीं देता। जब हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन की स्टेज में होते हैं, आपने पढ़ा होगा ग्रंथों में, वेदों में, रामायण, गीता, ऋषि मुनि, वो इतनी तपस्या करते थे कि उनके ऊपर जो टर्माइट्स है, दीमक भी जो ढेर बना लेती थी, उनको पता ही नहीं लगता था। और जब उनकी तपस्या पूरी होती थी तो वो जो भी कह देते थे, हाथ ऐसे कर दिया, किसी को भस्म करना है, नाउ आई बिलीव दोस थिंग्स, उनमें वो इतनी शक्ति आ जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपने जो सबकॉन्शियस माइंड था, which was 1000 times powerful than your conscious mind which you are working with. लेकिन क्यों? क्योंकि वो आउटसाइड वर्ल्ड से कट जाता है। जब आदमी मेडिटेशन की स्टेज में होता है
आउटसाइड वर्ल्ड से कट जाता है। इन दैट सिचुएशन इट इज इजी टू रीच योर सबकॉन्शियस। आपने कभी महसूस किया हो कि आप किसी स्थान पे फर्स्ट टाइम गए हैं, आपको लगता है कि ये तो मैंने कभी देखा है, महसूस किया होगा। आपने कोई परिस्थिति ऐसी आई, घर की परिस्थिति, रिश्तेदार आए, कुछ ऐसा हुआ, ये तो मैंने कभी, ये पहले भी हुआ था, देन आई रिकॉल कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो यहाँ कभी आया ही कभी हुई नहीं। आप नहीं गए, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसकी इतनी तेज स्पीड होती। पहले हमने पढ़ा हो ना, चिराग, अलादीन का चिराग, स्टोरी हम पढ़ते थे, अलादीन का चिराग। वो चिराग कुछ नहीं था, वो उसका सबकॉन्शियस माइंड था। और आप 2 बार ये जो अलादीन का चिराग है उसे महसूस कर सकते हैं। यू कैन रीच टू योर सबकॉन्शियस माइंड 2 times in a day। एक जब आप सोने की स्थिति में होते हैं, जब आप आधे नींद में होते हैं, आधे जगे हुए आधे सोने की स्टेज में होते हैं, उस समय आप सबकॉन्शियस माइंड को अप्रोच कर सकते हैं। एक आप जब सुबह उठते हैं, पूरे उठे नहीं हैं, आधी नींद में हैं, उस समय भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अलार्म नहीं लगाते, वो तकिया से कह के सोते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड से आप कह रहे हैं, तकिया से नहीं कह रहे। सोते समय आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप आदेश दे रहे हैं कि मुझे 5 बजे जगा देना, और आपने देखा होगा आप जग भी जाते हैं। कई बार आप 7 बजे उठते हैं, लेकिन कहीं जाना होता है, अलार्म लगाते हैं, लेकिन अलार्म से पहले ही उठ जाते हैं। नाउ यू हैव स्लेप्ट एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग फॉर यू। आप उसको जो आदेश देंगे, सबकॉन्शियस माइंड की एक दिक्कत है, इट इज वेरी पावरफुल एंड वेरी ओबीडियंट। आप उसको जो आदेश देंगे वो पालन करेगा, गलत भी दे देंगे तो उसको भी करेगा। तो आप उस समय माइंड को एक्सेस करिए, आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू अचीव दिस, एंड यू विल रियली सी द चमत्कार ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यू ऑर्डर हिम, इट विल obey your orders and ensure what you want, but you have to make it happen। So जो सोच है, जो मैं कह रहा था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। छोटा बच्चा है, उसको हम क्या कहते हैं, आप स्टार ले आओ, मदर कहती है तुम स्टार ले आना, क्लास में ए ग्रेड ले आना, चॉकलेट देंगे। अब वो कैरियर के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो मेहनत चॉकलेट के लिए कर। बड़ा होता है तो फिर कहते हैं 10th है 12th का कि तुम 80% प्लस ले आए तो मोटरसाइकिल। अब वो, उसको अभी अकल उतनी नहीं आई है कि वो कैरियर की सोचे, वो मोटरसाइकिल। मेरा भतीजा साले का लड़का, मैंने पूछा भाई वरुण कितने नंबर आएंगे तुम्हारे इस बार, 10th का दे रहे हो? कहते हैं फूफा जी 80%। मैंने कहा 80% तुम इतनी मेहनत करते हो, ज्यादा भी ला सकते। बोले पापा ने कहा है कि 80% लाए तो ये मॉडल दिलवाऊंगा मोटरसाइकिल का, और 85 लाए तो ये मॉडल दिलवाऊंगा, मुझे ये वाला मॉडल पसंद है। 80% पे कहा मोटरसाइकिल। तो वो स्टेज होती है जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, लेकिन एक स्टेज आती है जब आपके अंदर से होता है। हमारे यहाँ एक डॉग है, उसको सिखाया नमस्ते करना, कि कोई गेस्ट आए तो उसको जो दोनों पैर इधर ऊपर को करके नमस्ते करना, उसको कहते हैं क्रैकल नमस्ते करो। वो पैर उठा देता है, लोग बड़े इंप्रेस होते हैं कि डॉक्टर साहब भी इंटेलिजेंट हैं, ये है, और उनका कुत्ता भी देखे कितना इंटेलिजेंट है, कहना मांगता है, नमस्ते करता है। उसको पता है एक दिन हम जो है उसको नमस्ते के बाद उसको बिस्किट देते हैं, उसको पता है ये करने के बाद में जो है बिस्किट मिलेगा। तो एक आध बार भूल चाल पड़ गए, उसको नहीं दिया, तो अगली बार उसने जो है वो बोले क्यों बेकार में करना, बिस्किट तो मिला ही नहीं। तो वो स्टेज है जो हम बाहर से उसको मोटिवेशन, और मोटिवेशन हर एक को किसी न किसी तरह का मोटिवेशन, फाइनेंशियल नहीं, कोई ना कोई मोटिवेशन। एंड व्हाट एवर वी डू इन अवर लाइफ, इट इज बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन। Why I am speaking, spending my 2 hours, there may be some motivation. Why you have attended out of 75, only 40 are attending, why 40 are attending? There must be some motivation. And those who are not attending, they may be also having some kind of other kind of motivation. So whatever we do in our life, good or bad, it is because of some kind of motivation. Now,
money may be motivation. Some people recognition may be motivation. अब फाउंडेशन डे होता है, अवार्ड दिए जाते हैं. आपने कोई क्लास 4th का एम्प्लॉय है, उसको सर्टिफिकेट दे दिया. यू शुड नो व्हाट मोटिवेट पीपल. उस क्लास 4th का एम्प्लॉय को जो झाड़ू लगाने वाला है, उसको आपने सर्टिफिकेट दे दिया. वो दिखाता फिर रहा है, डॉक्टर साहब इसका मुझे क्या करना है. साइंटिस्ट को आपने 500 रुपए दे दिए, मोटिवेशन के लिए अच्छा काम किया था, या 1000 रुपए दे दिए. उसको वो 1000 रुपए से मोटिवेशन नहीं, उसको सर्टिफिकेट से मोटिवेशन होगा. और जो झाड़ू लगा रहा है उसको 500 रुपए से मोटिवेशन, क्योंकि उसको झाड़ू सर्टिफिकेट से झाड़ू लगवाने वाले का मोटिवेशन नहीं होना है. तो वी शुड नो एज ए लीडर व्हाट मोटिवेट पीपल. कुछ लोगों को काम किस तरह का दिया जाए वो मोटिवेट करता है. कुछ लोग हैं जिनको मिलने जुलने का बहुत शौक, उनको आप पीआरओ बना दीजिए, मेल जोल का काम दे दीजिए. कुछ लोग हैं जो टेबल ही नहीं छोड़ना चाहते, पूरी जिंदगी के टेबल साइंटिस्ट ही रहते हैं. उन्होंने आपको फील्ड वर्क दे दिया, आपको उन्होंने कभी जाएंगे नहीं, जाएंगे तो रोटे पीटते हुए जाएंगे. तो ये आइडेंटिफाई करना कि किस आदमी को किस तरह के वर्क में इंटरेस्ट है, वहां वो डिलीवरी अच्छी करें. कुछ लोग हैं जिनको चैलेंजिंग जॉब बड़ा मोटिवेट करता है. पिक्चरों में हमने कई बार देखा है, रामपुर जनरली गांव का नाम दिखाते हैं, डकैतों का एरिया होता है, और वो हीरो जो सब इंस्पेक्टर बना हुआ है वो कहता है कि साहब मुझे यहाँ पोस्टिंग, और आदमी जाना नहीं चाहता डर के मारे, डकैतों का एरिया है. लेकिन दैट सब इंस्पेक्टर लाइक हमारे कल्चर में भी कुछ लोग चाहते हैं कि हमें चैलेंजिंग वर्क, एंड सम पीपल अवॉइड चैलेंजिंग वर्क. तो वो हमें ये देखना है कि इस आदमी को कौन सी चीज मोटिवेट करती है. नाउ आई एम टेलिंग वन वेरी शॉर्ट mantra for motivation, which is again doesn't require any investment, and that is appreciation. Appreciation एक ऐसा मंत्र है जिसे आप यूज करेंगे बिना खर्चे के, आप खुश रहेंगे और दूसरे को मोटिवेशन. If you appreciate your children, if you appreciate your friends, they will try to come to that expectation. मुझे पता है you can do. If I have a feeling, I just go. I know you have the potential. हो सकता है पिछले साल किसी कारण से ऐसा हो गया हो, but I know you can do it. You have the potential. You can do it. Then you will try to come to the expectation of your parents if they are doing like this. लेकिन वो ये कह रहे हैं मुझे पता तुम तो नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, बहुत हमने मेहनत करके देखी तुम्हारे पीछे, you cannot do anything. वो क्या करेगा, उसके मन में हो जाएगा कि मैं तो नालायक ही हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता. So to encourage the people, even they are not in a position to do it, but once you say I know you can do it, they will try to come to your expectation. तो उनको appreciate करना. लेकिन हमारे कल्चर में appreciation की बहुत कमी है. हमारे कल्चर में appreciation है ही नहीं, और उसका कारण है कि जो हमारा गांव से आए हैं वो कल्चर दूसरा था, वहाँ एप्रिसिएशन बड़ा मुश्किल था, और कम से कम वहाँ का कल्चर ऐसा था एप्रिशिएट भी करेंगे तो हम अपने बच्चे को नहीं करेंगे, छोटे भाई के बच्चे को करेंगे, बड़ा भाई छोटे को करेगा, छोटे भाई बड़े, अपने बच्चों को नहीं करेंगे. और जहां तक वाइफ की बात है तो वहाँ एप्रिसिएशन क्या, वहां तो बात करना ही मुश्किल था, एप्रिशिएट कहाँ करना. तो वो कल्चर हम आ गए सिटी में, लेकिन अभी भी हमारा थिंकिंग वही रही है. हम दूसरों को तो अप्रिशिएट कर देंगे, भाभी जी खाना बहुत अच्छा बना है, अपनी मैडम का खाना कभी अप्रिशिएट करते नहीं. अब कुछ चेंज आ रहा है, करने लगे. एक सज्जन थे, दोस्त के यहाँ गए, खाना अभी शुरू नहीं किया था, बोले भाभी जी ऐसा खाना जिंदगी में पहली बार खाया. नाउ यू सी द डायनेमिक्स. उसकी वाइफ भी साथ में थी जो कह रहे हैं कि पहली बार खाना खा रहा. अब जो दोस्त था जिसके घर गए थे वो भी थोड़ा परेशान हो गया, इतनी तारीफ क्यों कर रहा है. उसकी वाइफ भी थोड़ी सी असमंजस में है, और उसकी जो वाइफ खुद की गई थी, जो खाना खाने गए थे, वो कह रही है कि इसको 20 साल से मैं खाना खिला रही हूँ और ये कह रहा है कि भाभी जी ऐसा खाना जिंदगी में मिला है.
जब वो लौट के आते हैं तो वो पूछता है कि जरा मेरा चश्मा देना, बोले भाभी से ले लो जाके। घर में 1 हफ्ते तक लड़ाई चलती है। कहने का मतलब आपको कहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए, एप्रिसिएशन एक तो है नहीं, और कहाँ करना चाहिए, दैट इज आल्सो मिसिंग। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे, start appreciating our own family members? इनहिबिशन है, कई बार आता है कि वाइफ के लिए अप्रिशिएट करें, यहाँ तक होता है छोड़ो यार अपनी तो इसका क्या अप्रिशिएट, दुनिया में क्या करना करके दुनिया में करो, लेकिन अपने घर से शुरू करो। हम बहुत माइजर हैं अप्रिशिएशन। एक मेरा दोस्त आया पन्नगर से, कह रहा है डॉक्टर साहब आपकी तो हेल्थ बड़ी अच्छी है, 35 साल पहले भी ऐसे ही बाल थे, बाल दांत सब आपके तो बिल्कुल ऐसे ही बने हुए हैं। I was feeling happy, he was appreciating. लेकिन एक और बगल में दोस्त बैठा था, वो कहता नहीं नहीं ये काले बाल नहीं है, ये तो इन्होंने रंग रखे हैं। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे लिए कोई अप्रिशिएशन कर रहा है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से भी थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है। मेरे एक सबऑर्डिनेट ने, मैं IRI में जब था, उसने एक गाड़ी खरीदी, मैं एटिक का इंचार्ज, एंड ही केम टू मी, सर आपकी कृपा से मैंने गाड़ी खरीदी। मेरी एक पैसे की कृपा नहीं थी, लेकिन वो उसका बड़प्पन था। ही सेड बिकॉज ऑफ यू सर, योर ब्लेसिंग्स आई हैव परचेज्ड ए कार। हमने तो माथा पकड़ लिया, अरे इसने गाड़ी खरीद ली। वैसे ही बिजी रहे थोड़ा सा, जस्ट टू अवॉइड हिम कि आई एम नॉट कंसर्न विद योर हैप्पीनेस। देन ही सेड कि सर बाहर लाया हूं, देखने चलेंगे क्या? रिलक्टेंटली आई वेंट आउट। अरे भाई ये तो बड़ा कॉमन कलर खरीद लिया, ये कलर तो बड़ा कॉमन है। अच्छा इसकी जो ये भी मैचिंग नहीं है, होस्टी जो है इसका अंदर का मैचिंग नहीं है। अच्छा इसमें फॉग रिमूवर है क्या? कैसा है? वो फॉग रिमूवर तो नहीं है, अपना टूटा स्कूटर है और उसका हम फॉग रिमूवर पूछ रहे हैं उसकी गाड़ी का। उसका पर्पज क्या था? पर्पज ये था कि उसके अचीवमेंट को नेगेट करना था और ये रियलाइज करा देना था कि उसने गाड़ी नहीं बैलगाड़ी खरीदी। दिस वाज माय वन एप्रोच। जो कहते हैं ना कि कोई दुख आपको देता नहीं है, दुख लेते हैं। हम अपने आप दुखी हो गए, अरे हमारी तो गाड़ी ऐसी 800 है, एक टूटा स्कूटर है, ये लंबी वाली खरीद लाया, ये तो T5 है, हम तो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। ये एक अप्रोच हमारे, एक रास्ता हमने ये चुना। दूसरा रास्ता क्या हो सकता था? वंस ही सेड कि सर आपकी कृपा से गाड़ी खरीद ली। अरे गाड़ी खरीद ली, वेरी गुड, लाए हो क्या? हाँ सर बाहर खड़ी है। अरे चलो चल के देखते। चल के गए, हो सकता है वो कलर उसका पुराना हो, भाई ये तो यूनिक कलर है, बहुत कम देखा है, रोड पे है ही नहीं। बोले हाँ सर ये नया नया आया है। अंदर गए, अरे ये तो बहुत इसमें एकदम मैचिंग है। फिर कहा इसमें जो म्यूजिक सिस्टम है ये कितने का लिया? मुझे पता है कि उसके साथ आता है, टू मेक हिम मोर हैप्पी। ये कितने का लिया है? बोले सर ये तो इसके साथ में लग के आया है। अरे वेरी गुड, ये अच्छी चॉइस है। फिर कहा तू तो ना लाएगा, ये तेरी चॉइस नहीं है, जरूर ये भाभी जी की चॉइस है। एंड ही इज अगेन मोर हैप्पी। आदमी को कितनी भी गाली दे दो और तारीफ कर दो कि भाभी जी का घर सारा मैनेजमेंट तुम्हारा भाभी जी कर रही है, भाभी जी की चॉइस होगी, अगेन हैप्पी। हाँ सर सुनी थी। फिर सर एक चक्कर लगाएंगे क्या एक्सटेंशन डिवीजन? गाड़ी में बैठे, एटिक इंदरपुरी गेट पे है, एक चक्कर लगाया और शाम को 1 किलो मिठाई का डब्बा, बोले सर मैडम ने भिजवाया है, बच्चों के लिए भेजा। नाउ यू विजुअलाइज द अर्लियर सिचुएशन when I was unhappy, I made him unhappy and he went to his house and he said कि हमारा बॉस तो बड़ा बेकार आदमी है, इसको इतना क्रिटिसाइज कर रहा था गाड़ी। दूसरी सिचुएशन में I am happy, I am making him happy and when he goes to his house he will tell to his wife कि boss was appreciating your choice, गाड़ी बहुत अच्छी है। ये कोई मेरा कुछ खर्चा नहीं हुआ, लेकिन ये चॉइस मेरी थी। Can we change our attitude? Can we appreciate the people? लेकिन ये हमारे उसमें नहीं है। मेरे जॉइंट डायरेक्टर थे 2005 में, एक दिन उन्होंने कहा, वो कम ही अप्रिशिएट करते थे, जेपी तुम्हारी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा सर आपका सूट बहुत बढ़िया है, ये सूट तो मैं 3 साल से पहना हूँ, तुम्हें कभी अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने कहा सर आज आपने मेरी जैकेट का अप्रिशिएशन किया है, मैंने जैकेट कर दिया, है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट।
तो ये नॉन इन्वेस्टमेंट, जो ज्यादातर चीजें हैप्पीनेस देती हैं वो नॉन इन्वेस्टमेंट वाली हैं। अब एप्रिसिएशन में थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है। अब बाहर के कल्चर में एप्रिसिएशन बहुत है। आपने कभी देखा होगा, कोई फॉरेनर होगा, आप उसके सामने से क्रॉस हो, तो कुछ नहीं बोलेगा तो मुस्कुराएगा। और हमारे कल्चर में कोई सामने पड़ जाए बरामदे में, अरे अब आ रहा है, नमस्ते करनी पड़ेगी, तो अगल बगल हो जाते हैं। और कोई रिटायर आ रहा है तो उससे तो और ही बच जाते हैं, अब ये टाइम वेस्ट करेगा यार, इसके पास तो बहुत है। लेकिन उनके कल्चर में मैंने देखा, whosoever will cross you, they will wish you, they will smile, जो हमारे कल्चर में नहीं है। आप जाइए, जो दिल्ली में है, कनॉट प्लेस में जाइए, पालिका बाजार के आसपास घूमिए, ये आपको महसूस होगा। क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है, किसी ब्यूटीफुल कोई गर्ल है, उसने आपको मुस्कुरा के कह दिया गुड मॉर्निंग, आपका तो दिन खराब हो जाएगा। कौन थी, नंबर क्यों नहीं ले लिया, जानती थी क्या? और हो सकता है 2-3 दिन उसी टाइम पे कनॉट प्लेस के आप चक्कर लगा, उनके कल्चर में है। आपको वैसे ही कंफ्यूजन हो गया कि मुस्कुरा दी थी। तो ये जो कल्चर है, इसको जो है थोड़ा सा, और ये भी मुस्कुराना हमारे जीवन से चला गया है, खत्म हो गया है। पहले जब हम उठते थे, गांव में थे, कुछ नहीं था, लेकिन उठते तो मुस्कुराते थे, छोटी छोटी चीजें की खुशी होती थी। रक्षाबंधन आता था तो ये हमें नया कपड़ा मिलेगा इसलिए खुश थे, दिवाली आएगी तो ये मिलेगा, देखने जाएंगे, बाजार घूमने जाएंगे, ये था। अब बड़ी बड़ी चीजें भी हो जाती हैं लेकिन खुश नहीं। और आप महसूस करेंगे, अभी आप स्टूडेंट हैं, कुछ लोगों की तो आदत ये हो गई है कि सुबह उठते ही सोचते हैं आज की चिंता का विषय क्या है। ये नहीं सोचते कि आज किस चीज पे खुश रहना है। वो उठते ही पहले ही पैर रखा जाएगा। मैं अपने आप को उस कैटेगरी में, तो सुधार कर रहा हूँ लेकिन पूरा सुधार हो नहीं पाता। नेगेटिव थॉट कि आज की चिंता का विषय क्या है। जब कोई बड़ी चिंता नहीं मिलती तो छोटी चिंता को लेके घूमते रहते हैं, क्योंकि चिंता करना हमारा स्वभाव बन गया है। तो इसको कैसे चेंज किया जाए? पहले उठते हुए मुस्कुराते थे, अब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, कुछ लोगों को तो मुस्कुराते हुए देखते ही नहीं है। 1950 का एक डाटा है, आपने बहुत डाटा पढ़े होंगे, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, यील्ड है, पोटेंशियल है, प्रोडक्शन है, ये है, वो सब पढ़ा होगा। एक हैप्पीनेस का डाटा है। In 1950, on an average, a person used to laugh for 38 minutes, average. Now that figure has gone to 18 minutes 2 years back, and now the latest figure is 16 minutes a day. 38 मिनट हंसते थे, अब 16 मिनट हंसते हैं। उस समय 50 मिलियन टन प्रोडक्शन होता था, आज 300 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है। 314 मिलियन टन जो है आपका हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का होता है, 176 मिल का होता है। आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, 70 मिलियन टन आपके गोदाम में रखा हुआ है। देश ने बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन जो हंसने का समय था, हैप्पीनेस का समय था, वो हमारा आधा भी नहीं बचा। तो हैप्पीनेस का भी संबंध कोई अचीवमेंट से नहीं है, रिसोर्सेस से नहीं है, ये भी आपका इंटरनल थिंकिंग है। इसको कैसे किया जाए? कहीं मैं पढ़ रहा था कि अचीवमेंट और सेटिस्फेक्शन का हार्ड वर्क, किसी ने कहा हार्ड वर्क करो, अचीवमेंट होगा और आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आइंस्टीन ने एक जगह लिखा है कि E=mc², एक थ्योरी है ही, उन्होंने लिखा है पहले आप खुश रहिए, ये अचीवमेंट से मैं रिलेट कर रहा हूँ हैप्पीनेस को। पहले आप खुश रहिए, हैप्पी रहेंगे तो हार्ड वर्क करेंगे, और हार्ड वर्क करेंगे तो आपको अचीवमेंट होगा, अचीवमेंट होगा तो आपको सेटिस्फेक्शन, that you can realize in your life, that you can inculcate in your life when you are happy। जब आप हंसते हैं होता क्या है, हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं, एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं। और आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो जब आप हंसते हैं, हंसना वो हंसना नहीं है जो आजकल हंसते हैं, ऐसे जरा जरा सा मुंह खोलते हैं दिखाने के लिए, वो हंसना नहीं, वो हंसना जब हम हॉस्टल में हंसते थे,
यार दोस्त कहते थे यार अब चुप हो जा, पेट फटा जा रहा है। वो हंसना होता था। आजकल क्या है कि कोई रिश्तेदार आया, क्योंकि वो टीवी में डिस्टर्ब करेगा, मोबाइल का हमारा टाइम खा जाएगा, तो जब वो जाएगा तो थोड़ा सा हम मुस्कुराएंगे कि फिर आइए। लेकिन वो कुछ चश्मा भूल गया, अंदर चला, कैसा डॉक्टर साहब चश्मा रह गया मेरा मोबाइल, यार फिर मुस्कुराना पड़ेगा। मतलब इतना कॉस्टली हो गया है मुस्कुराना। जब फोटोग्राफर भी आपका खींचेगा फोटो, जब ग्रुप फोटो होते हैं, तो कहता है वंस मोर, तो एक बार तो जोर लगा के किसी तरह से मुस्कुरा देते हैं। लेकिन वंस मोर में फिर यार ये क्या, कहाँ से इतना कैसे कराएंगे? अरे भाई इसमें क्या जोर पड़ता है? आप देखिए कितने लोग हैं जो नंगे हैं, भूखे हैं, कुछ नहीं है, वो पूरे दिन हंसते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं। आपकी गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, ये मोबाइल वो मोबाइल, दुनिया भर का चारों जेब में भरे हुए हैं, फिर भी आपको हंसी नहीं आती। तो उसमें जब बॉडी में आप हंसते हैं, और पार्क में जो हंसते हैं उनको देख के तो आपको खुद हंसी आ जाएगी। वो यहाँ से हंसते हैं, गला फाड़ फाड़ के मुश्किल से जोर लगा के वो हंसते हैं। हैप्पीनेस थेरेपी के सेशन शुरू हो गए, क्लब्स खुल गए हैं। लेकिन जो आदमी स्वस्थ है वो वैसे भी हंस सकता है। तो इसे चार चीजें जो है, आपके जो चार अंग होते हैं, जब आप हंसते हैं तो वो जो है फंक्शनल हो जाते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक आपका नर्वस सिस्टम, उसकी जो नर्व्स है रिलैक्स्ड हो जाती है। एक आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, वो बिल्कुल ब्लॉकेज खुल जाते हैं, फ्लो फ्री फ्लो उसका हो जाता है। आपका जो सिस्टम है तीसरा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब आप कहते हैं ना पेट फटा जा रहा है, पेट कैसे फटा जा रहा है, मतलब ऊपर नीचे पेट हो रहा है, तो वो आपके जो एब्डोमेन में खाना है वो जल्दी पच जाता है। लोग कहते हैं कि 5 मिनट की हंसी 30 मिनट नाव चलाने या तैरने के बराबर होती है। क्या हम हंस सकते हैं 5 मिनट दिन में? खर्चा नहीं है, पर क्या हंस सकते हैं क्या? अभी इंडिया का हालत बड़ी खराब है। मैं कोई डाटा देख रहा था, आज सुबह देखा क्लास में आने से पहले। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का जो नंबर है 144वां नंबर है। फिनलैंड नंबर 1 पे है, स्विट्जरलैंड है, नेपाल का 15 नंबर पे है, पाकिस्तान का 29 नंबर पे है, बांग्लादेश का 107 पे है, श्रीलंका का 130 पे है, और इंडिया का 144 पे है। What I am saying, there is no positive correlation between your resources, achievement and happiness. क्या हम अपने कल्चर में इसको कर सकते हैं क्या? टाइम कम है, 15 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। कैसे आप खुश रह सकते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड एक मैंने आपको बताया कि आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करिए। दूसरा, लोगों को आप अप्रिशिएट करिए, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे एंड यू विल फील द नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स इज इंक्रीजिंग। तीसरा, आप अच्छे लिसनर बनिए। हो सकता है कम्युनिकेशन की और भी क्लास होगी, अच्छे स्पीकर की जगह अच्छे लिसनर भी बनिए, क्योंकि आज के जमाने में कोई सुनना नहीं चाहता, सब बोलना चाहते हैं, और हर आदमी को ऐसे आदमी की तलाश है जो उसकी बात को सुनने के लिए तैयार हो। और जब आप अपनी बात सुना लेते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन होता है। जब एप्रिशिएट करें तो उसका ख्याल रखें कि कुछ लोग जो है, मैंने भी ये सीखा नया नया, एप्रिशिएट करो एप्रिशिएट करो। मैडम थी, प्रोफेसर थी, डिवीजन में थी एक्सटेंशन की। मैंने कहा मैडम आपका सॉल्व बहुत बढ़िया लग रहा है। मैडम कहती हैं डॉक्टर साहब सुबह से कोई और नहीं मिला क्या? अब ऐसे लोगों को क्या एप्रिशिएट करोगे? पर एप्रिशिएट करने में कोई अच्छी चीज हो ये जरूरी नहीं है। यू हैव टू मेक पीपल हैप्पी आल्सो। उनको कंफ्यूजन तो नहीं करना कि गलतफहमी हो जाए, पर इतना ध्यान रखना है कि उसको आपको खुश करना है। अब उसमें साड़ी अच्छी है, अब आप क्या कहेंगे? साड़ी तो अच्छी है, उम्र के हिसाब से नहीं जा रही। अब उम्र और ये सब चीज क्यों उसमें आप डाल रहे हो? साड़ी अच्छी है, साड़ी की आप तारीफ कर दीजिए। और साड़ी न भी अच्छी हो तो तारीफ करने में आपकी क्या बुराई है? वो हो सकता है आज नहीं तो कल कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपका भी नया सूट लिया है कि 3 साल से भले ही पहन रहे हो, तो किसी ने किसी ने तारीफ कर दी, अगेन हैप्पी। दूसरा, आप जो पुरानी अच्छी मेमोरीज हैं उनको याद करिए। हमारे उसमें नेगेटिविटी क्या है? एक्चुअली जो आप तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं,
एक होता है प्लांट जिसको आप बोते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, तब उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन जो वीड्स होते हैं उनको तो आप लगाते भी नहीं, ना उनको पानी देते, ना उनको खाद देते, ना उनका प्लांट प्रोटेक्शन कुछ होता है, लेकिन वो पौधों से भी ज्यादा सशक्त होते हैं, वो उससे भी ज्यादा होते हैं। इसी तरह से जो ऐसा मेंटल मेकअप हो गया है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ओवरकम करते हैं आपके पॉजिटिव थॉट्स। तो आप जो है अपनी जो बैड मेमोरीज हैं उनको निकालिए, कोशिश करिए कि वो हावी ना हो, और जो गुड मेमोरीज हैं, आजकल थोड़ी सी दिक्कत हो गई। पहले बच्चे के बर्थडे की फोटो है, हमारी शादी की फोटो है, नीमून पे कहाँ गए उसकी फोटो है, एल्बम को लेके बैठते। जब भाई बहन सब इकट्ठे होते थे किसी मौके पे, चलो वो वाली एल्बम देखते, वो एल्बम में हम खो जाते थे, वहां पहुंच जाते थे, इमोशनल भी हो जाते थे, खुश भी होते थे। अब ये जो मोबाइल आ गया है, इसमें लिया और डिलीट किया और इधर भेजा और उधर भेजा। हम हॉस्टल में थे, चिट्ठी आती थी हॉस्टल से, जब आते थे कॉलेज से तो एक अट्रैक्शन होता था कि जहाँ पे चिट्ठी रखी जाती है भाग के वहां जाते थे। जिसकी चिट्ठी आती थी वो ऐसे उड़ा के जाता था खुश होता हुआ, और जिसकी नहीं आती थी मुंह लटका के चला जाता। उस चिट्ठी को कई कई बार पढ़ते थे, उसमें कुछ ऐसी चीज नई नहीं होती थी, और गांव में नया होना भी क्या था, वही खेती थी, वही बैल थे, वही घर था, वही घेर था, लेकिन उसमें माँ बाप, उसको उनका फोटो दिखता था, भाई का फोटो दिखता था, इमोशंस दिखते थे, कई कई बार पढ़ते थे, संभाल के उसको रखते थे। बात तक रखी, नौकरी लग गई तब भी चिट्ठियों का जो है वो रखा हुआ, उसमें इमोशन थे, देखते थे, खुश होते थे, संतुलन होती थी। तो अच्छी मेमोरीज को क्या हम कैरी कर सकते हैं, ये आपको खुश रख सकते हैं। अच्छे लोगों से मिलिए। अच्छे लोगों से मतलब ये नहीं कि बहुत अचीवमेंट वाले हों या बहुत बड़े हों, ऐसे लोग हों जो लाइट हार्टेड हो, जिनसे मिलके आपको खुशी मिले। आप दुखी हैं, किसी से मिलने गए, आप अपनी बात कहना शुरू नहीं किए, वो अपना दुख का रोना रो के बैठ गया आपके सामने, आप वहां से जान बढ़ा के भागे कि यार ये तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है, इससे क्या करना। लाइट हार्टेड पीपल से जो आपके दुख को शेयर करे, ऐसे लोगों की लिस्ट भी बना सकते हैं। एक आध लोगों से, जैसे हमारे यहाँ भी था, हम IRA में थे, 6:30-7 के बाद में मिलने आते थे, और हमने तो ये कंडीशन रखी थी, डॉक्टर बर्मन को पता होगा, कि जो भी 7 बजे के बाद में आएगा खाली हाथ नहीं आएगा। जैसे ही मेरा दरवाजा कोई खोलता था 7 बजे, मैंने कहा आज क्या लिफाफा कहाँ, मैंने कंडीशन रख रखी थी, भाई हमको भी भूख लगती है, यहाँ 8 बजे तक बैठते हैं, जो भी 7 बजे के बाद आएगा वो कुछ ना कुछ लेके आएगा, तो लेके आता था, कोई कुछ लेके आता था, कोई ढोकला लाता था। हम आधा पौन घंटे वो काम नहीं, वो रिफ्रेश करते थे, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसी बातें करते थे, और हंसी खुशी सब जो है 8-8:30 बजे वहां से निकलते थे। स्टूडेंट को भी मैंने टाइम बाद का ही दे रखा था। लेकिन कुछ लोग क्या है, जब मिलते हैं वो किसी तीसरे को पकड़ते हैं, वो डिस्कस अपने बारे में नहीं करते, प्रोग्राम का डिस्कस नहीं करते, प्रोजेक्ट का डिस्कस नहीं करते, अपने बारे में भी डिस्कस नहीं करते, तीसरे को किसी को पकड़ लेते हैं और उसका डिस्कशन जो है शुरू हो जाता है। वो भी कोई पॉजिटिव नहीं, उसकी बिल्कुल बकिया उधेड़ देते हैं, और फिर सेटिस्फाई होके चलो यार बहुत हो गया, उस एटीट्यूड को। देयर आर पीपल हु डिस्कस इवेंट्स, देयर आर पीपल हु डिस्कस अदर पीपल, एंड देयर आर पीपल हु डिस्कस द प्रोग्राम प्रोजेक्ट। तो आपको थर्ड कैटेगरी में आना है। जब कभी मिले ये बात भी करें, लेकिन कुछ ऐसी बात करें, लाइट हार्टेड बात भी करें, लेकिन क्रिटिसिज्म और उन सब से टाइम, फिर कहते हैं टाइम नहीं मिलता। टाइम तो बहुत है, टाइम तो 24 आवर्स है, सभी के पास है। महात्मा गांधी जी के पास भी 24 आवर्स था, बकरी को भी चारा खिलाते थे, गाय भी बांध रखी थी, चरखा भी चलाते थे, दोनों समय प्रार्थना भी करते थे और देश को भी चलाते थे। उनके पास टाइम था, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम टाइम को किल करते हैं। हमारा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बहुत खराब है। नेक्स्ट, जो कैसे खुश रह सकते हैं, 3-4 चीजें, मैंने ज्यादा नहीं, आप अपने मन से डर को निकाल लीजिए। डर आपको किसी भी तरह का है वो खुश नहीं रहने। Whatever you have achieved, it will nullify your achievement if you are worried, if you are in a fearful situation. एक मैं जनरली सुनाता हूँ। एक लंबा तगड़ा आदमी था, घोड़े पे सवार था, रिवॉल्वर बगल में टांग रखी थी। एक मोटल के सामने घोड़ा रोका, अंदर गया,
2 पैग लिए, लौट के आया, उसका घोड़ा गायब था। उसने हवा में फायर किया और वहां अनाउंस किया कि 10 मिनट के अंदर मेरा घोड़ा यहीं बंधा होना चाहिए, नहीं तो आज वो होगा जो 6 साल पहले चंदनपुर में हुआ था। फिर वो आदमी अंदर गया, बड़ा लंबा तगड़ा था। 10 मिनट बाद लौट के आया तो उसका घोड़ा बाहर बंधा हुआ था। घोड़े पे बैठने लगा तो एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र कम बची थी, बोला, साहब घोड़ा तो आपका मिल गया, लेकिन ये बताइए कि 6 साल पहले चंदनपुर में क्या हुआ था? वो बोला, चंदनपुर में इसी तरह से मेरा घोड़ा चोरी हो गया था और मुझे अपने गांव चंदनपुर 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा था। ये हुआ। चंदनपुर में कुछ नहीं होता। आप अपनी दीवार पे, अपने हॉस्टल में, अपनी टेबल पे लिख लें कि चंदनपुर में कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो चिंता है, ये डर है, आपकी विजडम को खत्म कर देता है। आपने देखा होगा कि कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती है, आप चश्मा ढूंढ रहे हैं, चश्मा आपके सामने रखा हुआ, घर की चाबी ढूंढ रहे हैं, चाबी कई बार हाथ में ही है, चाबी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उस समय आपका जो विजडम है वो बिल्कुल जो है खत्म हो जाता है। तो इस डर को कैसे निकालें, इस वरी को कैसे निकालें? इससे आपकी जो क्षमता है काम करने की वो बहुत प्रभावित होती है। और अल्टीमेटली जो मैंने बताया, डर, वरी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीजें एक कड़ी में होती हैं, इसको आप दूर करें। एक टर्म आया है डिक्शनरी में, यू लिव ओनली वंस, योलो, और वो भी लिमिटेड एडिशन है। ऐसा नहीं कि लिव ओनली वंस तो जिंदा रहते ही रहेंगे, एक लिमिट है। और किसी ने मैसेज भेजा था कि आपकी उम्र इतनी है तो इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड बचे आपके पास। जब उसको हमने देखा तो बड़ा डर सा लगा, रे अभी तक तो वेस्ट ही कर दिया सारा, और तो बहुत कम बचा है। और किसी आदमी को आप देखना, इससे कह दिया जाए कि अब तुम्हारा समय आ गया, वो कहता है कि मुझे 1 हफ्ता दे दो, 1 दिन दे दो। दिन तो बहुत थे। वो कहता है कि मुझे कुछ समय दे दो, मैं जैसे जीना चाहता था वैसे जीऊंगा। मैंने जिंदगी भर माँ बाप का ख्याल नहीं रखा, वाइफ को, बच्चों को कभी प्यार नहीं दिया, मुझे कुछ समय और चाहिए। यदि ये रियलाइजेशन किसी के आ जाए, आई हैव I have a limited time, then your whole life, perspective of whole life will change. You live only once. That is an opportunity. And that is also, you don't know when you have to leave. So every day is your time. You live it. And there are 3 pages in the book of life. First page, gone. First page कौन सा था? चला गया। नेक्स्ट पेज कब आएगा उसका पता नहीं, कैसा होगा उसका पता नहीं। टुडे इज ओनली गुड, एंड टुमारो whatever will come, it will again become today. So you have to live today. Another term I have seen in the dictionary, FOMO, fear of missing out. कई बार हमें लगता है कि दुनिया तो मजे कर रही है, हम ही हैं जो परेशान हैं। 2 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को खराब करती हैं, एक्सपेक्टेशन एंड कंपैरिजन। अब ये जो मोबाइल आया है, इसने भी ये जो फोमो है इसको जो है बड़ा प्रमोट किया है। लोग जाते हैं, अभी खाना खाने बैठे नहीं है, उसका फोटो लेके, सेल्फी लेके डाल देते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक। अब घर में भी देखते हैं, अरे देखिए सब दुनिया कितने मजे कर रही है, ये फलाना मनाली गया हुआ है, ये वहां गया हुआ है, हम ही हैं जो घर में बैठे। तो दूसरे लोग जो है वो आपको जिंदा नहीं रहने देते। एक तो मेरे दोस्त ने, उसका फ्रैक्चर हो गया था, उसने फोटो भेजा, एंजॉइंग द ब्रेकेज, वो ब्रेकेज एंजॉय कर रहा है, हम तो दोनों पैर ठीक है, उसको भी एंजॉय नहीं कर रहे। तो ये जो 2 चीजें हैं, कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशन। आप या तो किसी के लिए कुछ करो मत, यदि करते हो तो फिर जैसे पहले कहते थे, नेकी कर कुएं में डाल, भूल जाइए। यदि एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने इतना किया, ये किया, ये किया, ये किया,
एंड डोंट एक्सपेक्ट कि वो भी आपको रिटर्न करे। नहीं किया तो आपकी वो दुख का कारण बनेगा, उसको आप चेंज करो। एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ लॉन्ग यू लिव, द इम्पोर्टेंट इज व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। मैं एक दिन बस में जा रहा था, मे बी दीज थिंग्स आर रिलेवेंट फॉर यू, फॉर योर लाइफ। तो कंडक्टर, जो ड्राइवर के बगल में उसका दोस्त बैठा हुआ था, आपस में बात कर रहे थे। ड्राइवर ने पूछा और क्या चल रहा है? यार इतनी कट गई, इतनी और बची है, वो भी कट जाएगी। मैंने पूछा भैया उम्र कितनी है? कहता है अंकल 40 साल। मैंने कहा तू आज ही मर गया। 40 साल तुम्हारी उम्र है, तुम कह रहे हो कि इतनी कट गई है, इतना और कट जाएगी, एज इफ लाइफ इज ए पनिशमेंट। इसे काट रहे हैं। So I suggest, I advise, live every minute, every second. उसे काटो मत। ये कोई आपको कोई असाइनमेंट नहीं दिया गया है कि आपको इतने साल जीना है। उसको आप जिंदा दिल रह के यू लिव द लाइफ। तीसरा, वेरी नाइस। ये जो मेरा समय अभी आएगा उसको भूल जाइए, अभी आपका समय है। और एक ने पढ़ा था, मंगल पे जीवन है कि नहीं, इस पे चर्चा हो रही है, मंगल पे जीवन है कि नहीं। मेरा कहने का मतलब है उस चीज को आप भूल जाइए, मंगल पे जीवन है कि नहीं। आप ये देखिए कि जीवन में मंगल है, जीवन में मंगल है। और यदि आप जीवन में मंगल ला पाएंगे तो ये अचीवमेंट और जिन सब विषयों पे आज चर्चा हो रही है वो ऑटोमेटिकली यू कैन अचीव इफ यू फील इमोशनली, intellectually strong and change your attitude about yourself, and then you will see that communication is another important dimension. If you have all these three things, motivation, attitude, and positive communication, you can achieve anything in your life. With these words, thank you very much. I don't know whether there is a provision of interaction or not. If it is there, I would like to interact. Yes, sir. Please go ahead, sir. You can interact. Now I request all the students. We've had a wonderful lecture, and thank you so much, sir. And please interact with sir. If you have anything to share, any query, because when we talk of social sciences, it is person-based. So there is no 2 plus 2 is equal to 4. But if you have something to share, that we can do. And many things are my own individual views, which may not be relevant for everybody. But generally, whatever I have shared, this is based on my own experiences working in the society and other category of the people, and also with the students. So anybody, they want to share something? Thank you, sir. Yes, please. Sir, I am Dr. Shukanta Vishwas. Sir, I am really grateful, sir, for your spellbound, thoughtful deliberation, which motivated us for a lifelong, sir. Sir, now I have just one question. That, sir, in our family, how we motivate our childs during this lockdown period of crisis period, as the school is totally closed and they are engaged in online schooling from home. Sir, please, if you suggest some advice. I will be addressing little bigger issue, your family and your children. Whatever I have discussed, I was talking about the attitude. Now, from where this attitude comes, positive or negative? Yes. It comes from the value system. And where these values are formed, सबसे जो पहली स्टेज होती है जो हमारे बच्चे में संस्कार, जिसको हम संस्कार कहते हैं, वैल्यूज में संस्कार। जो आप पूछ रहे हैं वो थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन जो बच्चे के जो संस्कार बनते हैं वो कैसे बनते हैं? तो फर्स्ट
6-7 ईयर्स होते हैं, वो संस्कार बनने का एक समय होता है जो, और ये फर्स्ट स्टेज होती है संस्कार या वैल्यू डेवलपमेंट की, विच इज रिफ्लेक्टेड इनटू एटीट्यूड एंड एटीट्यूड इज रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर। ये 3 स्टेजेस हैं, वैल्यू, एटीट्यूड एंड योर बिहेवियर, एंड योर बिहेवियर अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी। सो जो वैल्यू बनती है, संस्कार बनते हैं, वो परिवार से बनते हैं। अब परिवार के सबसे जो बच्चा होता है, वो शुरू में उसको अच्छाई बुराई कोई चीज पता नहीं होती। इवन कोई गरम तवा रखा हुआ है, गरम चीज है, उसको भी छू सकता है, और उसका जो माइंड होता है वो क्लीन स्लेट की तरह होता है। तो जब उसने उसको छुआ तो उसको पेन हुआ, और वो उसके रिकॉर्ड हो जाता है कि ये मैं छूंगा तो मुझे जो है कष्ट होगा, और लाइफ लॉन्ग फिर उसको गर्म चीज को या तवे को नहीं छुएगा। दैट इज रिकॉर्डेड इन द माइंड। अब संस्कार वाली बात, आपके बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया, देयर में बी 2 रिएक्शंस। एक पेरेंट होगा जो उसको बिना सोचे समझे उसकी पिटाई कर देगा, थप्पड़ मारेगा। वो उसके रिकॉर्ड हो गया कि यदि कोई नुकसान होता है तो थप्पड़ मारा जाता है, पिटाई की जाती है। जब वो फादर बनेगा बच्चा, तो उसे, उसका बच्चा जब गिलास तोड़ेगा या कोई नुकसान करेगा तो उसे सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, वो उसको थप्पड़ मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। यदि वो पेरेंट अपने बच्चे को गिलास तोड़ा है, नुकसान किया है, उसको समझाता, बेटे कोई बात नहीं, गिलास तो टूट गया, लेकिन तुम्हारे पैर में चोट लग सकती थी, तुम्हारे हाथ में चोट लग सकती थी, आगे से सावधानी बरतना। तो उसको पता है कि उसका बच्चा कभी जो करेगा, जब वो पेरेंट बनेगा तो ऐसे व्यवहार करना होता है। तो ये व्यवहार जो बच्चा है वो माँ बाप से, पेरेंट से, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली के मेंबर से सीखता है। अभी घर में कोई टेलीफोन आया, टेलीफोन पे पता लगा कि साहब गया प्रसाद जी बोल रहे हैं। बच्चे ने टेलीफोन उठाया और पिताजी से कहा, पिताजी वो गया प्रसाद का फोन है। अब पिताजी को पता है कि गया प्रसाद से पैसे ले रखे हैं, उधार मांग रहा होगा अपना पैसे। तो आपने क्या कहा बच्चे से, उनको कह दो पिताजी घर में नहीं। अब बच्चे के माइंड में ये रिकॉर्ड हो गया कि ऐसी स्थिति से बचना होता है तो झूठ बोलना होता है। अब वो परिस्थिति उसके सामने आएगी। तो ये फर्स्ट लेवल के संस्कार हैं। तो आप इसीलिए कहते हैं कि किसी घर में यदि लड़की है तो उस घर के संस्कार बदल जाते हैं। कम से कम पेरेंट्स गाली गलौज नहीं करते हैं, इस एटलीस्ट बच्ची के सामने। तो ये एक बड़ा इशू है कि हम जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के सामने हम कैसा आदर्श रखें। ये पढ़ाई या लॉकडाउन का पीरियड ये एक इशू है, लेकिन बड़ा इशू ये है क्या हम उनको अच्छे संस्कार देते हैं। और अच्छे संस्कार इस एज में पढ़ा के नहीं दिए जाते, वो ऑब्जर्वेशन से होते हैं। आप क्या करते हैं, कब उठते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं नहीं करते। अब कौन कौन से, अब बहुत से परिवारों में यही नहीं पता कि अभी जैसे पितृपक्ष चल रहा था, कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया, ये उनको पता ही नहीं। एकदम सही। यदि वो देखता है कि हाँ भाई ग्रैंड पेरेंट्स उनकी ये सब करते हैं, ये त्योहार होते हैं, ये होते हैं, तो वो सारा उसको जो है उसके रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग जो संस्कार बनते हैं वो 6-7 साल की उम्र तक बनते हैं। दूसरे लेवल के संस्कार जो होते हैं वो एजुकेशन से। जब बच्चा जहाँ भी पढ़ता है, हमारे स्टूडेंट जहाँ पढ़ते हैं, तो पहली लेवल पे मान लीजिए अच्छे बने, और दूसरे लेवल पे जो उसके जो संगति मिली, जो उसकी कुलीग्स थे, जो उसके सहपाठी थे, यदि उनके संस्कार ठीक नहीं, उनकी आदतें ठीक नहीं है, तो कई बार अच्छे संस्कार घर के होते हुए भी वहां उनमें परिवर्तन आ जाता है। इसलिए बच्चे पे यही नजर नहीं रखनी है कि वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, लेकिन किस संगति में वो बैठ रहा है वो आपको ज्यादा ऑब्जर्व करना है। और तीसरे लेवल के जो संस्कार बनते हैं वो जब आप किसी कार्य क्षेत्र में होते हैं, नौकरी में होते हैं। हमने देखा है पहले लेवल के संस्कार भी अच्छे थे, ईमानदारी थी, ऑनेस्टी थी। दूसरे लेवल के भी ठीक थे, IIT से पढ़ा हुआ था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में बड़ा अधिकारी था। आपको याद हो 5-7 साल पहले ये घटना हुई थी, 7-8 साल पहले। वो इतना ऑनेस्ट था, जो एडल्ट्रेशन वगैरह ये जो पेट्रोल पंप पे होता है, ये सारा उसने छापामारी की, ये किया वो किया, सब किया, उसका मर्डर हो गया।
क्योंकि वो उस सिस्टम में नहीं चल पाया, उसके संस्कार फर्स्ट कैटेगरी के, सेकंड कैटेगरी के, थर्ड कैटेगरी में आके वो फेल हो गया। और कुछ लोग, उसका तो मर्डर हो गया, कुछ लोगों का क्या होता है कि वो जीवन भर उसमें उलझते रहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे तो वैल्यू सिस्टम तो ये है, लेकिन यहाँ तो सर्वाइवल नहीं है। और आपने कईयों का देखा होगा कि 20 साल की सर्विस में 25 साल उनका ट्रांसफर, इसलिए नहीं, वो अकर्मण्य थे, काम नहीं करते थे, इसलिए कि जो करप्ट सिस्टम था वो उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर पाए, अपने आप को सबमिट नहीं कर पाए, लिहाजा उनको सिस्टम प्रताड़ित करता गया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि आज से यदि हम कुछ लोग जिनके बच्चे छोटे हैं इस चीज को ले जाएं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं है कि ये देखो सदा सत्य बोलो, सदा ये करो, दूसरों की मदद करो। आप क्या कर रहे हो? कोई अपाहिज आदमी आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, आपके सामने कोई गिर गया है, आप अपने पेरेंट्स को वहाँ कौन सा वो वृद्धावस्था में जो वृद्ध आश्रम है वहां छोड़ आए हैं। एक छोटी सी वो आई थी कि जब उसकी ग्रांट पेरेंट्स को जो है वो खाना एक बर्तन में देते थे, वो भी ऐसे ही सरका देते थे माँ बाप को। तो जो छोटा बच्चा था उसने कहा पिताजी इस बर्तन को संभाल के रखना। बोले क्यों बेटा, ये तो सब वैसे ही है। बोले नहीं, कल आप भी बुढ़े हो गए तो इसी बर्तन से मैं आपको भी खाना दिया करूंगा। मैसेज छोटा था लेकिन इसका भाव बहुत बड़ा है, भाव बहुत बड़ा है। यदि और ये हमारी समझ में नहीं आता कि हम अपने पेरेंट्स के साथ में क्या कर रहे हैं, वो बच्चा हमारा देख रहा है। कल को आप उससे ये शिक्षा दोगे कि माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का कहा मानो, जबकि वो देख रहा है कि दिन रात आप अपने माँ बाप को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये संस्कार देना परिवार के लेवल पे मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। ये कोरोना में कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे मोटिवेट किया जाए, ये एक इशू है, लेकिन सबसे बड़ा इशू है कि कैसे उसको अच्छा नागरिक बनाया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कल इस पे 8 बजे तक चर्चा थी, पहले नेशनल लेवल पे, मैं 5-7 प्लेटफॉर्म पे इसमें रहा हूँ। सबसे ज्यादा जोर, कल भी एजी साहब के यहाँ मीटिंग थी, सारे JNK के वाइस चांसलर्स के साथ में मीटिंग थी, पूरे दिन 8 बजे तक चली। उसमें इस पे भी भाषा पे बहुत जोर दिया गया कि जब तक हम अपनी भाषा में, हिंदी बोल रहा हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं, सपने भी देखते हैं। कोई हम अंग्रेजी में कभी सपना देखा है क्या? नहीं सर। हंसते हैं, सोचते हैं, खुशी होते हैं कि अंग्रेजी में खुश होते हैं क्या? नहीं सर। हिंदी में होते, हिंदी नहीं, मेरा मतलब जो हमारी भाषा है उसमें भाषा है। जब हम अंग्रेजी बोलते हैं, विचार हिंदी में आता है, गले में उसका ट्रांसलेशन होता है, तब वो निकल के जाता है, उसमें क्रिएटिविटी आती कम हो जाती है। डबल प्रेशर आपका माइंड पे पड़ता है, एक विचार को जनरेट करने में, एक उसको ट्रांसलेट करने में। तो वो इस पे एक बिंदु ये था कि जो भी जिस क्षेत्र की भाषा है, एजुकेशन उसमें। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जितने वाइस चांसलर थे हमको छोड़ के, और एक माता वैष्णो देवी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर को छोड़ के सब अंग्रेजी में बोले, ये कहने के बाद कि हमें हिंदी में जो है एजुकेशन देना चाहिए। ये इसको दूसरा जो सबसे बड़ा वो था, जो आज आपका ये है विषय है, लाइफ स्किल्स। तो जो एजुकेशन का जो सबसे बड़ा पार्ट बनने जा रहा है वो लाइफ स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आएगा। और जो थर्ड चीज है, एथिक्स है, उन पे जो है इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, संस्कार है। तो ये हर कॉलेज में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस का जो है इंटरफेस किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जो आज हमारी चर्चा है ये सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं थी। मैं हर समय कहता हूं इसमें से डर को निकाल दें, एप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। तो कुछ 3 चीजें भी आप यहाँ से ले जाएंगे तो मेरे हिसाब से अचीवमेंट हो या ना हो, कम से कम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़ा परिवर्तन आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आएगा। थैंक यू सर, ग्रेटफुल सर। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर। सर थैंक यू सर। आई वाज नॉट देयर, मतलब बीच में मैं थोड़ा क्लास था तो इसीलिए मुझे जाना पड़ा, बट आई कुड come back timely.
और मुझे लगा कि बहुत अच्छा मतलब सेशन चल रहा था और सबको आई होप दैट एवरीबॉडी कुड गेट समथिंग आउट Splendid ऑफ इट. session, sir. Thank Naman you sir, for it sir was a your splendid blessings. session. Now I propose Dr. Girjesh Mahara, request him to propose the vote of thanks. थैंक यू सो मच सर. नमस्कार सर. और सभी पार्टिसिपेंट्स ने सर को सुना और ऐसे वक्ता, ऐसे प्रखर वक्ता जब अपना सेशन दे देते हैं उसके बाद जो वोट ऑफ थैंक्स करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए बड़ा कठिन होता है वोट ऑफ थैंक्स देना. अगर हम सर की बात करें, सर ने जिस तरह से लेक्चर लिया और सर मैं जब वैज्ञानिक बन के व्हेन आई जॉइंड एज अ साइंटिस्ट इन द डिवीजन, सर तब हेड थे और सर उसके बाद फिर जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन बने हमारे IRI में. और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि सर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को यदि करीब से उसको बिल्कुल उसकी आत्मा में यदि किसी व्यक्ति ने झांका है तो वो सर ने झांका है, क्योंकि सर ने वहां वैज्ञानिक के रूप में काम किया, प्रधान वैज्ञानिक के रूप में काम किया, कैटेट के हेड के रूप में काम किया, केवीके के हेड के रूप में काम किया, हमारे डिवीजन के हेड के रूप में काम किया, जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन के रूप में काम किया और एक बार तो सर ने जॉइंट डायरेक्टर रिसर्च, जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन पूरा संस्थान ही संभाल लिया था. और जिस तरह से मैंने इन 4 सालों में देखा कि सर ने जिस तरह से प्रसार को पहचान दिलाई संस्थान के अंदर, वो हम लोगों के लिए बड़ा ही मोटिवेटिंग और हम लोगों के लिए बड़ा इनरिचिंग था. प्रसार को पहचान दिला दी सर ने. जिस तरह से वाइब्रेंस सर वेबसाइट में ले आए, जिस तरह से वाइब्रेंस सर मेरा गांव मेरा गौरव के प्रोग्राम्स में ले आए, तो ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटी, और हम कम्युनिकेशन में हमेशा ये बात कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. तो सर जितनी बातें कह रहे हैं कि उन सारी बातों को अपने जीवन में उतारना और उन सब बातों को करके दिखाना, सर ने वो सब अपने जीवन में प्रैक्टिस किया है. और ऐसे व्यक्ति से सुनना हमारे निश्चित रूप में एक गौरव की बात होती है. हम इस वोट ऑफ थैंक्स एक्चुअली सर के जो वर्ड्स हैं और सर का जो लेक्चर रहा, जिस तरह से आप लोगों को बांधा, और सबसे ब्यूटी सर के लेक्चर की हमेशा ये रहती है कि एकेडमिकली साउंड तो वो लेक्चर होते ही हैं, क्योंकि सर उसके अंदर छिपे हुए कॉन्सेप्ट तो बताते ही हैं, साथ में उसके अंदर ह्यूमर क्रिएट करना, उसको अपनी निजी जिंदगी से जोड़ के आपको इस लेवल तक समझाना कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट समझ के आए ये एक कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट ही कर सकते हैं. तो सर बिल्कुल साइंस एंड आर्ट जो कम्युनिकेशन किए उसके मास्टर हैं. और इसके बाद साथ साथ जो बातें सर कहते हैं वो अपने जीवन में चरितार्थ कर चुके हैं. तो सर इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्लेजर टू लिसन यू. और उसके बाद संयुक्त प्रसार निदेशक होने के बाद सर वाइस चांसलर का पद ग्रहण करते हैं और वाइस चांसलर के पद की शोभा इस समय सुखास जम्मू में बढ़ा रहे हैं. ये भी हमारे लिए बड़ी गौरव की बात होती है. तो सर का जेस्चर, सर का पोस्चर, सर का लाइव, सर के वर्ड, सर का लेक्चर, ये अपने आप में इतना इनरिचिंग है कि ये जो लाइव स्किल की हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको बहुत अच्छा लगा होगा, सुन के मोटिवेशन मिला होगा. इस लॉकडाउन पीरियड में हमने देखा कि हमारा मोटिवेशन बड़ा डाउन था, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और ऐसा लेक्चर ऐसे वक्त पे आया है सर का, तो निश्चित रूप में आपको एकेडमिकली, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में सारी ग्रोथ के लिए सर ने सारगर्भित रूप से पूरे जीवन का दर्शन दे दिया. सर वी थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट एंड आवर हार्ट इज बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपने इस सारगर्भित लेक्चर के लिए. और हमारे पार्टिसिपेंट निश्चित रूप से जिस तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, जिस तरह से वो बीच बीच में हंस रहे थे, आपके साथ जुड़ रहे थे, बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे आपको, ये एक बहुत बड़ी बात है. और सर हम आपको पूरे दिल से धन्यवाद कहते हैं. सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहता हूं और हमारी पूरी ट्रेनिंग टीम और विभाग की ओर से हम सर को धन्यवाद देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर. Thank you, Dr. Mehra. Though the vote of thanks is over, sir, you're still there? Yes, I am here. Yes, sir, but it is incomplete unless I thank you from the bottom of my heart. I'm so happy, first of all, to see you, after so many days. Even though, we are separated miles apart, but I can feel that vibrancy and that nice feeling which we get. We are, for so many years, we have been together. And of course, as usual, your lecture has been effective, at the same time interesting, at the same time motivating. And just to recap for our students, like you have touched upon, motivation, how to be happy, how to maintain balance in life, appreciation, जीवन में मंगल कैसे लाना है, which is most important. So thank you so much for everything. Ultimately, quality of life is important. If there is some quality in life, it is a worthwhile life. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Thank you. Thanks. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you very much. Okay. It's heavy.
And so in spite of being Vice Chancellor, you have devoted so much time for us. Very great. Thank you. Madam, we will again meet at 3. Okay. And Dr. Rita Sengupta, Madam, will join. Okay. The link is the same. Link is the afternoon link is different, Madam. Morning link एक है for all 5 days. Afternoon link is different for all 5 days. Yes, sir. We have links. We will join at 3 p.m. Thank you, Yes, sir. yes. Okay. Thank you. Thank you. We will join, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.